ذاکر نائک کا چیلنج قبول ہے جی مجھے. ذاکر نائک نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی بھی مسیحی جو ہے مرد کا بچہ وہ آ جائے اور مسیح کو بائبل سے خدا ثابت کر دے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو. مجھے میتھیو سلیمان کو بندہ ناچیز کو ذاکر نائک کے چیلنج قبول ہے، اور میں 20,000 جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی 20,000 کا مجمع لانا ہے، وہ بھی بندہ ناچیز لے آئے گا. تاریخ دیں، ٹائم دیں، جگہ بتائیں، بندہ ناچیز حاضر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ کلپ کاٹ کے آپ اس کو سوشل میڈیا پہ جہاں مرضی پھینکتے پھریں، ذاکر نائک تک اس بات کو پہنچائیں. ٹھیک ہے جی. میرا نام پادری سیمسن جان ہے اور میرا تعلق سی ڈی اے سے ہے، کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی سے، اور میں کرسچن اپولوجسٹ بھی ہوں. اور آپ نے گزشتہ روز کراچی میں پوری مسیحیت جو پاکستانی مسیحیت ہے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا. تو میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے، اور ہم 20,000 بندوں کو پیش کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، وہ اس مناظرے میں پریزنٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ بائبل مقدس میں کوئی ایک آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13 اس میں لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. جب آپ بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو ببلیکل لینگویجز کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ جو خداوند کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کوریوس ہے، اور کوریوس کے ساتھ جب بھی آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خدا کے معنی دیتا ہے. تو مسیح جب اپنے بارے میں گوسپل آف جان میں یہ بات کرتے ہیں تو وہ خدا ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. اس کے علاوہ گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر 3 اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو تم ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. تو یہاں پر بھی یسوع جو ہیں اپنے آپ کو کوریوس آرٹیکل کے ساتھ خدا کہہ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر سنیے بھائی صاحب، ایک سوال پوچھنا چاہیے، ایک سوال ایک ٹائم پہ، سمجھے نا. پہلا آپ کا سوال کہ آپ میرے چیلنج کو ایکسپٹ کرتے. شاید آپ نے میری تقریر نہیں پڑھی جی، یا میری تقریر سنی نہیں. چیلنج کرنے کو میں جب چیلنج کرتا ہوں الگ بات ہے، آپ نے سوال کیا، سوال کا جواب دوں گا. اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے، میرے ڈیبیٹ کے شرائط ہے، جی جی، میرے ڈیبیٹ کے یہ شرائط ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے ڈیبیٹ کرنا ہے پبلک میں تو کم از کم وہ 5% جیسا میں مجمع اکٹھا کرتا ہوں. میرے سب سے بڑا مجمع ہے 10 لاکھ ہندوستان میں. کتنا؟ 10 لاکھ. تو کم از کم 5%، 50,000 کا مجمع تیار کرو. آپ نے 20,000 کا کہا تھا. سنیے میری بات، سنیے میری بات. میں جب بات کر رہا ہوں بیچ میں دخل مت دیجیے. جی جی، آپ بات کریں. 30,000 آپ کے لیے 30,000 چلو مان گئے. 30,000 مجھے سننے میں پرابلم ہوئی. آپ نے 30,000 کہا، 30,000 بھی مان لیا. سب سے پہلا میرا 10,000 تھا، پھر 20,000 ہوا. جب سے بڑھتے جاتا ہے، میری تعداد بڑھتے جاتی ہے تو عام بھی بڑھتے جاتے ہیں. سب سے پہلے میں کہتا تھا 10,000 کرو کیونکہ مجمع میرا چھوٹا تھا. جب مجمع بڑھتے جاتا ہے اور پاپولیرٹی بڑھتی جاتی ہے تو میرا منیمم کرائٹیریا بھی بڑھتے جاتا ہے. میں نے پہلے جب بحث کیا تو جو لوگ صرف 5,000 اکٹھا کرتے ان کے ساتھ بھی میں نے ڈیبیٹ کیا. وہ پہلے تھا ایئر 2000 میں، 1998 میں. آپ بولتے 30,000 مان کے. آپ مجھے یہ بولیے کون سا آپ کا ڈیبیٹر 30,000 لوگ کو اپنے واحد لیکچر کے لیے جمع کر سکتا ہے؟ نام کیا اس کا، اور فوٹو دو مجھے. کون سا آپ کا ڈیبیٹر ہے؟ میں جانتا ہوں دنیا میں سینکڑوں کرسچن ہیں جو لاکھ سے زیادہ اکٹھا کر سکتے ہیں. بینی ہن، مورس ریلو، جمی سوگیٹ، یہ سب نام ہے. آپ کا کون سا آدمی ہے جو 30,000 اکٹھا کر سکتا ہے؟ نام کیا، اس پر ثبوت پیش کرو. ہم یہاں پر جو ہے کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ 20,000 لوگوں کا انتظام کرے گی اگر ہم ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ نے، آپ کے کوئی مقرر نے جو ڈبیٹ کرنا چاہتا ہے، پادری شفیع کمل اور میں پادری سیمسن جان جو ہے، تو پادری سیمسن جان زندگی میں کبھی بھی 30,000 لوگ کو خطاب کیے اکیلا. کانفرنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکیلا. کب کیے؟ تاریخ بولیے اور ثبوت پیش کیے. جو اکیلا. ہم جب چرچ میں، سنیے میری بات، چرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پبلک کی خطاب کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر نماز پڑھائیں گے 1 لاکھ لوگ کو، بولیں 1 لاکھ کو خطاب کیا جمعے خطبے کے لیے، وہ صحیح نہیں ہے. وہ اگر چرچ میں آ رہے تو اللہ کی عبادت کرنے آ رہے، سیمسن جان کی تقریر سننے کے لیے. کون شخص کہے گا کہ میں نے خطاب کیا ایک بڑے مسجد میں جس کا 1 لاکھ کا مجمع ہے؟ وہ دلیل نہیں ہے کہ 1 لاکھ اس کے لیے ہے. وہ 1 لاکھ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے. آپ سمجھ رہے؟ خطاب مطلب گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے، آڈیٹوریم میں ہونا چاہیے، چرچ کے اندر نہیں. آپ اتنا بھی نہیں جانتے، کیا ڈیبیٹ کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. سنیے میری بات. مورس ریلو کا نام سنے آپ نے؟ جمی سوگیٹ کا نام سنے؟ بینین کا نام سنے؟ یہ سب دنیا میں مشہور مقرر ہے، ٹیلی ایونجلسٹ ہے. یہ تقریر کرتے ہیں 1 لاکھ لوگ، 2 لاکھ لوگ، 3 لاکھ لوگ، 5 لاکھ لوگ. شری روی شنکر نام سنے؟ جی جی. رام دیو بابا نام سنے؟ جی جی. ابھی آپ کے سیمسنگ جان کیا؟ تو اکیلا کرنا چاہیے، اکیلا، چرچ کے اندر نہیں. آپ نے جب
सुनिए मेरी बात ना, आप चैलेंज सुनिए दिया सुनिए तो- सुनिए जी जी ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए, कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहाँ 30,000 लोग थे, आप बोल सकते? मैं हाँ कि नहीं? एक बात कहना चाहता बात हूँ नहीं सुनने का मुझे आपकी, मैं पूछना चाहता हूं, आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है। सरमन करेगा। मैं क्या मस्जिद में आज कर रहा हूं, मैं जब बाहर मैदान में करता हूं, चर्च में लोग ईश्वर की इबादत करने आते हैं, उसके नाम पे बोले मैंने इकट्ठा किया, ये वैलिड नहीं है। आप समझ रहे? ये वैलिड नहीं है। वो शख्स जब बाहर तकरीर करता है और बाहर लोग आते हैं तो सबूत है कि उसके वजह से है। चर्च में तो लोग इबादत करने आ रहे, ये वैलिड है ही नहीं। तो हमारे मस्जिद के अंदर, हमारे मस्जिद में तो लाखों लोग आते ना, यहाँ भी बादशाह मस्जिद में लाख आते, आप जाएंगे इस्लामाबाद में 3 लाख आते, तो वहां का खतीब थोड़ी कह सकेगा क्या 3 लाख मेरे लिए है, वो 3 लाख है नमाज पढ़ने के लिए। अभी ज्यादा वक्त बहस मत वेस्ट मत कीजिए, इतना बड़ा मजबा है, वक्त अभी 1:20 है, बराबर ना? आपने जो सवाल किया उसका पहला सवाल को तो जवाब दे दिया, आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं, फिर भी डिबेट करना चाहते? मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में हो, तुमसे डिबेट करेंगे, हिंदुस्तान में हो डिबेट करेंगे, कब आने को तैयार है बोलो? मलेशिया हो। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है, आपसे डिबेट करके आपको एक फतह मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप कब आते मलेशिया? हायर करो स्टेडियम मलेशिया में, सैमसंग। अफसोस की बात, इससे मालूम पड़ता है आपका जहन क्या है। आपने जब सुनिए चैलेंज सुनिए सुनिए सुनिए, आपका वक्त खत्म हो गया अभी। अल्लाह सूरह अल-माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 क्रिश्चियंस को कहा गया कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं, तो मसीह के लिए तो वलद का वर्ड बिगॉटन सन इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान में, पूरे कुरान में। चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलद नहीं है, कुरान ये कहता है जो क्रिश्चियंस कहते हैं। इब्न अल्लाह भी कहना गलत है, वलद भी कहना गलत है, दोनों गलत है। और आपने तो कहा कि इब्ने अल्लाह को जो बंदा अमल करे अल्लाह के रास्ते पे, तो इसमें क्या गलत है? सुनिए सुनिए, एक होता है मुहावरा, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, मैं करूंगा मेरा बेटा, बेटा बोला तो कोई मामला नहीं, तू मेरा जना हुआ बेटा बोलूंगा मतलब मैं उसको गाली दे रहा हूँ, मैं उसके माँ के साथ क्या किया हूँ, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जना हुआ बेटा बोलने के अलावा बेटा बोलने में फर्क है। इंग्लिश में सेम लफ्ज है, लेकिन आप लोग जब पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life। ये आपके किंग जेम्स वर्जन में है। ये तो तर्जमे आप ये आयत को अरबी में पढ़े, मैं देखना चाहता हूँ कि वलद लफ्ज आता है कि नहीं आता किसके अंदर? अरबी के अंदर। ये जॉन 3:16 पढ़े और मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें वलद वर्ड अरबी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ। अरबी बाइबल में बिगॉटन सन बोले तो वलद इस्तेमाल करना चाहिए, आपके तर्जुमा करने वाले गलत तर्जुमा कर रहे हैं, उनको अरबी पता ही नहीं। अगर बिगॉटन सन है तो लाजिम वलद ही आना चाहिए, इब्न नहीं आ सकता है। आप समझ रहे? अगर आपके बाइबल तर्जुमा करने वाले गलत कर रहे तो मेरी गलती नहीं, उनकी गलती। मैं क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपको बचाना चाहता हूँ आई लव यू टू दोज़ख से, मैं आपको दोज़ख से बचाना चाहता हूँ। तो आप अभी यकीन करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है? जी जी मानते हैं कि पैगंबर है? जी जी। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? देखा जाए तो जाहिर बात है वो इंसान है तो खुदा तो नहीं है। हाँ, इंसान है, खुदा नहीं है। पीते थे, खाते थे, पीते थे, वॉशरूम भी जाते होंगे, तो अल्लाह तो वॉशरूम नहीं जाता। मस्जिद है, तालियां न बजाएं। बिल्कुल सही दरखास्त, आप बिल्कुल सही फरमाते। इंसान है लेकिन अजीम इंसान है। Islam is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके लिए फर्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता है तो वो मुसलमान नहीं कहला सकता। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो माने कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबर थे, सिर्फ पैगंबर ने, अजीम पैगंबर थे। हर मुसलमान को फर्ज है मानने के लिए
का ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के जन्म लिए, जो बहुत से क्रिश्चियन नहीं मानते। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जिसको कोढ़ था और लेप्रेसी थी उनको उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि वो अजीम पैगंबर थे, खुदा नहीं थे, इंसान थे, लेकिन अजीम इंसान थे, एक अलग कैटेगरी। आप समझ रहे ना? तो आप अगर मानते ही का ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है और एक मानते ही का अजीम पैगंबर है, मेरा दूसरा सवाल, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खाली टाइम बहुत हो गया, आपका तो सवाल ही लंबा हो गया, डिबेट हो गया। जी डिबेट होगा तो मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? बाइबल में लिखा हुआ है। मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, उन्होंने जो किया सही। नहीं मानते तो मैं हवाला दूंगा, तर्जुमा नहीं करूंगा, बहुत वक्त निकल जाएगा। बाइबल में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19, in the book of Isaiah chapter number 12 verse number 29 it is mentioned the Song of Solomon chapter number 5 verse number 16। ये ओल्ड टेस्टामेंट का हवाला है, न्यू टेस्टामेंट भी है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11। आखिरी तर्जुमा करता हूँ, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak. He shall glorify me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ईसाइयों से कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, बहुत से हक की बात कहना है, लेकिन अभी आप समझ नहीं सकते। मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, हक का पैगाम लेके आएंगे और आपको हक की बात कहेंगे और मेरी तारीफ करेंगे, यानी आपको हिदायत दे रहे। लेकिन डेविड वुड तो सैम शमोन इसकी तफसीर कुछ और करते हैं। चले ये डिबेट होगी, मैं माफी चाहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आए। मैं बहुत टाइम ले चुका, आपका वक्त बहुत कीमती है, तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। आप ये तौफीक दे। आप मेरी तकरीर सुनिए। जी जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। हमारे पास ना एक इधर गैर मुस्लिम भाई हैं, वो भी सवाल करना चाह रहे हैं। आप किस माइक से बोल रहे हैं? माइक नंबर 3। ठीक है, पूछें, अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल मसीह है और मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से हूँ। और मैं आपका पेशा क्या है? सर प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, और मेरा थोड़ा शौक है कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मैं उसके बारे में क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्रिश्चियन? आप क्रिश्चियन हैं? जी सर। जी, अपना सवाल मुख्तसर करके पूछें ज़रा। जी सर। सर मैं सही बुखारी 3808 का रेफरेंस दे के कहता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सहाबा को रिकमेंड किया था। एक मिनट, बुखारी, सही बुखारी 3808 हदीस नंबर 3808 आके। जी जी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सहाबा को रिकमेंड किया था कि अगर किसी ने कुरान सीखना है तो इन 4 सहाबा से सीखे, जिनमें हज़रत उबई बिन काब थे, अबू हज़ैफ़ा के गुलाम सालम थे, माज बिन जबल और उबई बिन काब उनका नाम है। 4 सहाबा थे, खैर वो देख लीजिएगा। अच्छा, आपका सवाल क्या है? अच्छा, अब उबई बिन काब से मुस्तदरकुल हाकिम में एक हदीस है, हदीस का नंबर है 8068 और उसमें सही है, उसको बुखारी और मुस्लिम की शराइत पे हज़रत ज़र फरमाते हैं, हज़रत उबई बिन काब सूरह अहज़ाब पढ़ रहे थे, मैंने कहा इसकी 73 आयात हैं। उन्होंने फरमाया सिर्फ मैंने कहा सिर्फ। आपने फरमाया मैंने देखा यह सूरह तो सूरह बकरा के बराबर है, और हम इस आयत में जो पढ़ा करते थे उसमें यह भी थी, शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत जब ज़ना करे तो इन दोनों को लाजमी तौर पर रिजम कर दो, अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है। इसी तरह की हदीस सूरह बकरा भाई साहब आप रेफरेंस 2-3 दे चुके हैं, आप अपना सवाल पूछें। आपका सवाल क्या है?
سر سیم طرح کی جو کوٹیشن ہے سورہ اس کے بارے میں آتی ہے سورہ برات کے بارے میں. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سر آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ آیات ابھی قرآن میں حصے نہیں ہے, کیونکہ ٹوٹل اگر نکالیں تو 350 سے اوپر کی ورسز ہیں جو سورہ برات میں اور سورہ آل احزاب میں مسنگ ہے, کیونکہ سورہ بقرہ میں 286 ورسز ہیں اور کرنٹلی سورہ آل احزاب میں 73 ورسز ہیں. اس میں سے مائنس کریں تو 213 ورسز سورہ آل احزاب میں اور 157 ورسز جو سورہ توبہ میں مسنگ ہیں, تو یہ ٹوٹل 350 سے ابو بنتی ہیں. تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو آیتیں ہیں وہ زیادہ ہے, ابھی کم ہے, اور ان نے گنتی کی کہ 200-300 ابھی کم ہیں. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جسے کہتے ہیں ایبروگیشن, مطلب قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109, 106 اور 109 کہ ہم اللہ تعالیٰ آیتیں کو بھلاتا نہیں, لیکن اس کے بدلے بہترین آیت پیش کرتے. تو اسے کہتے ہیں ایبروگیشن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نسخ. ناسخ اور منسوخ, ناسخ اور منسوخ. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ حدیث بھی منسوخ ہو جاتی, مطلب ابھی اپلیکیبل نہیں. تو اسی طریقے سے کئی قرآن کے آیتیں ہیں جو اگر جو اسکالرز ہیں وہ اسٹڈی کر کے یہ کرتے, ریسرچ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ناسخ اور منسوخ ہے, مطلب ایبروگیٹ کی جاتی. تو اسکالرز اس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں, یہ انہیں پتہ چلتا ہے کیونکہ ہماری ہدایت کی کتاب 2 ہے, قرآن اور صحیح حدیث. صرف آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں, ذرا بھی پرابلم نہیں. جب حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث 3 قسم کی ہوتی ہے, موٹے موٹے حدیث تو قسم, ایک صحیح, ایک ضعیف اور ایک موضوع. صحیح مطلب اوتھینٹک, ضعیف مطلب ویک, اور موضوع مطلب گڑی ہوئی. اس طریقے سے تو کئی, یہ تو ایک ٹائپ آف کلاسیفیکیشن ہے, کئی قسم ہے کلاسیفیکیشن کے حدیث کے. تو جہاں تک کہ قرآن کی آیت قرآن آن اٹس اون دیر از نو پرابلم, کوئی پرابلم نہیں. حدیث میں, حدیث کے اندر آپ کو پہلا دیکھنا پڑے گا حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے, اور اس کے بعد ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے کہ نہیں. جی اپنا نام, پیشہ اور مختصر کوشچن پیش کریں. جی میرا نام واجد احساس ہے اور میں ایک طالب علم ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے 4 سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا. میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں, یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں, ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں, دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں. میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں. جب میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے؟ ایک یہ, اور یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے؟ یہ میرا کوشچن ہے ذاکر صاحب سے. اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فزیکل آنسر نہ دیں, ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا عقل سے اور جس کی اپروچ ریشنل ہو. تھینک یو ویری مچ. آپ کا نام کیا ہے؟ واجد احساس. واجد احساس. آپ مسلمان ہیں؟ آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ ریلیجن سر. ہاں, آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے, برابر؟ یس سر, یس. اپنے بھائی صاحب واجد مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے, 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کرتے, کہتے ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے, میں اچھے کام کرتا ہوں, کچھ لیتا ہوں تو ٹائم پہ واپس دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے, تو کیوں اسے دین پہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے بھائی صاحب. ایسے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں, کئی شخص ہے. اچھا ہونا کس کے معیار سے؟ آپ کے معیار سے. ہمیں اچھا ہونا چاہیے خالق کے معیار سے. خالق کا معیار کیا ہے؟
अच्छा होना वो जो ईमान रखता है, अमल सालिहात करता है। बताओ सब हक, बताओ सब। भाई साहब का सवाल है, लॉजिकल जवाब दो, लॉजिकल जवाब दो कि मैं 4 साल से दीन पे अमल नहीं कर रहा हूं, बहुत खुश हूं, जो चीज लेता हूं टाइम पे वापस करता हूं, तो आप साबित करो कि क्यों मुझे दीन पे अमल करना चाहिए। जो आप बोल रहे आप बहुत खुश है, वो मेरी खुशी के लिए काफी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग को आपने सही रास्ते पे लेके आया आपके 4 साल में, कितने लोग आपको मानते, बोलिए मुझे। वाजिद भाई किधर है वाजिद भाई? जी जी सर। हाँ, कितने लोग आपको मानते 4 साल में? 5,000 10,000 कितने लोग मानने लगे आपको? सर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरी पर्सनल लाइफ पर, ना मेरी जो है एक इज्तमाई जो मेरी जिंदगी है मुआशरे में, कि मेरे ऊपर कितने लोग मानते हैं या मुझे कितने लोग अच्छा समझते हैं। ये है कि जो एक ज़ाब्ता सेट किया हुआ है सोसाइटी की जानिब से, और एक अकल के जो तकाजे हैं, यानी एक अकलियत का तकाजा है कि मेरा मुआशरे में एक अच्छे इंसान का कैसे रोल हो सकता है, और या मेरा इंडिविजुअल का एक मुआशरे में अच्छा रोल कैसे हो सकता है, तो उस तरह मेरा एक अच्छा रोल है। मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई एक ऐसा रैशनल कोई अप्रोच हो, रैशनल एविडेंस हो, रैशनल आंसर हो, जिसकी वजह से मुझे रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा। आप जो बोल रहे अकलियत के हिसाब से, अकलियत जो इंसान समझती है हमेशा सही नहीं होता। आपको पता है, पहले दुनिया लोग समझते चपटी है, सैकड़ों साल हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है। जी सर, बिल्कुल ये है कि एवोल्यूशन हो रही है। भाई साहब अभी आपका सवाल खत्म हो गया, मेरा जवाब सुनिए आप। जी जी जी, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप? ये रैशनल आप समझते नहीं, जब सिंपल समझ नहीं सकते आप बोलते आप बहुत एकदम क्या बोलते कंटेंट है, आप इतना नहीं समझ सकते क्या कंटेंट है। आपको सवाल देने का मौका दिया गया, अभी मेरा जवाब सुनिए। हर इंसान अपने दिमाग से समझता है वो सही है, वो चोर भी अपने दिमाग से सही है समझता है। वो चोर जो चोरी करता है, जो चोर चोरी करता है, वो अपने दिमाग से सही समझता है। आप मुझे एक पॉइंट बताओ, एक चोर है, मान लो मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, करोड़ों रुपये लोग की चोरी करता हूं, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और मैं चोरी छोड़ दूंगा। एक, चलो भाई साहब वाजिद में जवाब दो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों रुपये चोरी करता हूं, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। जी सर, उसकी वजह यह है कि आप अगर चोर हैं और चोरी करते हैं तो आप गलत इसलिए हैं कि आपके अमल से लोगों की जिंदगियों पर जो है मनफी असरात पड़ रहे हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या समझते हैं, मैं तो खुश हूं ना, चोरी करके रोज रोज खरीदता हूं, मुझे क्या। आपको जब मेरे की जरूरत, आप थोड़ी देर पहले पूछे, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या मेरे में, मैं खुश हूं। उसी तरीके से आप लॉजिक पे बात करो, लोग क्या सोचते बात मत करो। मैं तो ये पूछता हूं, आप मुझे मंतिक से, लॉजिक से एक पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। ये मत बताओ लोगों को तकलीफ होती, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अच्छा है ना, मैं चोरी खरीदता हूं, रोज रोज खरीदता हूं, बंगला खरीदता हूं, क्या गलत है? लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या भाई, मुझे क्या नुकसान उससे, आपको नुकसान है। आप ये बताओ मेरा नुकसान क्या है? एक दो ने सर, आप ये मुझसे मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं कि आप खुश हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा सर यही सवाल है। एक लॉजिकल पॉइंट बोलो साबित करने के लिए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों अरबों रुपए चोरी करता हूं, मैं बहुत खुश हूं। लोग को तकलीफ होती गई बाहर में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है। इसको बोलते सेल्फ सेंटर्ड। इससे आपने क्या बोले, मैं खुश हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, उसी तरीके से मैं खुश हूं, तो आप क्या बोलेंगे मैं अच्छा इंसान हूं? आपकी लॉजिक किधर गई? एक चीज बताओ, एक दो ने, सिर्फ एक। सर मेरे अमल से, मेरे रिलीजियस होने से, आपके अमल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी चीज की बात कर रहा हूं भाई साहब। आप अगर जवाब नहीं दे सकते तो बोलो, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। आप मुझे एक चीज लॉजिकल बताओ जो मेरे लिए नुकसानदार है। अच्छी बात है, मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे मेरी अपनी फिक्र है। एक लॉजिकल बताओ। आप 4 साल से कर रहे हैं, मैं 10 साल से कर रहा हूं। आप तो आपकी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है, मेरी हालत तो बहुत अच्छी है भाई। मेरे पास अरबों रुपए का घर है, अरबों रुपए की गाड़ी है मेरे पास, नौकर चाकर है। आपको सिर्फ तालिबे इल्म है, कौन अच्छा आप या मैं? इसीलिए लॉजिक, आप ऐसा बोले कि मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, तो मैं आपसे अच्छा ना। अगर दुनिया की फिक्र है और मंतिक से सोचो जो जवाब है, नहीं मुझे बाकी लोग की फिक्र है, मैं खुश हूं, तो हर गलत आदमी बोलेगा मैं खुश हूं, आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा जैसे आप बोल रहे। मंतिक से सोचे तो मेरे कई तकरीर है। मंतिक से सोचे तो आदमी खुश कौन है? लोग को, अभी आपके जवाब पे आता हूं। आपने जो डायलॉग मारे ना, मुझे लोग की फिक्र नहीं, उसमें तो फंस गया। एक बता नहीं सके मुझे, एक, और बताएंगे भी तो उसका बोलेंगे पुलिस पकड़ेंगी, पुलिस मेरे खीसे में, मैं सबसे बड़ा माफिया है, कौन अटैक करेगा मेरे पास पीछे पे बॉडीगार्ड है। मेरी पूरी तकरीर इसके ऊपर। अभी मैं आता हूं आपके सवाल पे। लोग अक्सर समझते हैं कि पैसे से अमन मिलता है।
آپ کو پتا ہے کہ جتنے دنیا میں ٹاپ 10 ریچسٹ مین ہیں 10 میں سے 8 کا طلاق ہو چکا ہے. ٹاپ 5 میں سب کا طلاق. کئی ریچ مین کے بچے لوگ نے کمپلین کیا اپنے والد کے بارے میں. کیا ہیپینس, کیا ہیپینس. ایلون مسک نمبر 1 اس کا طلاق, جیف بیزوس اس کا طلاق, بل گیٹس اس کا طلاق. ریچسٹ مین $100 بلین, $150 بلین, $200 بلین. کیا فائدہ. آپ کو لگتا ہے ہمارے دماغ میں غلط فہمی خوش ہے, ان لوگ بالکل خوش نہیں ہے. وہ جو انسان گاؤں کے اندر سکون کی نیند سوتا ہے وہ ان سے زیادہ خوش ہے. اور یہ دنیا, آپ نے میری تقریر شاید سنی ہی نہیں. اگر سنی ہوتی تو یہ بات ہی نہیں بولتے تھے آپ. میرے تقریر میں نے کہا ہوں کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے آخرت کے لیے. آپ جب آخرت میں مانتے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا. اگر منطق سے سوچیں گے, لاجک سے سوچیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس دنیا کا خالق ایک ہے. آپ میری ویڈیو کا سیٹ سنیے. ڈز گاڈ ایگزسٹ. واجد بھائی, واجد کا مطلب کیا؟ آپ کا نام کیوں نہیں بدلتے آپ؟ واجد کا مطلب کیا؟ پانے والا سر. کیا پانے والا. پانے والا. کیا پایا آپ نے؟ سر میں نے 4 سال پہلے پایا. ہاں, ابھی چھوڑ دیے تو نام تو بدلو. لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے؟ سر یہ میری سوسائٹی سے مناسبت رکھتا ہے, لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر. موسٹ ریسپیکٹ کے ساتھ سر وہی تو بول رہا ہوں میں نا, میرے سوال کا جواب کے لیے میرے تقریر سنو. ڈز گاڈ ایگزسٹ. سر وہ ایک اور سنیے نہیں جا رہا. یہ بحث نہیں ہو رہی ہے. آپ کا سوال ختم ہو, جواب دے رہا ہوں میں. آپ یہ ماننے کے لیے ڈز گاڈ ایگزسٹ, جو لوگ خدا میں نہیں مانتے وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے چور غلط ہے. ابھی میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. جو لوگ, آپ کچھ بھی بولو, آپ بڑے چور ہیں, آپ کو پولیس پکڑیں گے, پولیس میرے کھیسے میں, آپ کی کوئی دوسری چوری کریں گے, آپ کا چوری کوئی کر نہیں سکتا, میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہے. صرف ایک ہی لاجک سے آپ اس چور کو غلط ثابت کر سکتے. اگر میں مسلمان ہوں اور مجھے کوئی چور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا چور ہوں, میں خوش ہوں, مجھے ایک لاجک بتاؤ کہ غلط ہے اور میں چھوڑ دوں گا. میں اس سے پوچھوں گا اگر تمہارے ساتھ کوئی نا انصافی ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ انصاف ہو. بھلے آپ کے ساتھ کوئی چوری نہیں کر سکتا, مان لو, لیکن آپ کے ماں کے ساتھ اس نے غلط حرکت کی ہے, آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کو سزا ملے. آپ کے بہن کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے, آپ نہیں چاہیں گے اس کے ساتھ سزا ہو. یہ دنیا میں آپ مثال لو ہٹلر کی. ہٹلر نے 6 ملین 60 لاکھ لوگوں کا قتل کیا. آپ کی پولیس اگر ہٹلر کو پکڑے گی کیا سزا دے سکتی ہے؟ میکسیمم اس کو جلا سکتی ہے. ایک کے بدلے 59 لاکھ 5,999,000 اپنی اس پہ عدل ہوتا ہے. آپ اگر حساب کتاب کریں گے تو انجسٹس ہے. آپ ہٹلر کو پکڑیں گے, آپ کی لاجک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو؟ بولو کیا سزا دے سکتی ہے؟ مان لو ہٹلر کو آپ نے پکڑا, اس نے 60 لاکھ لوگ کو زندہ جلایا, آپ کی لاجک کیا کہتی ہے؟ کیا سزا مل سکتی ہے اس کو؟ بولو واجد بھائی. سر آپ میرا سوال کا جو ہٹلر کو آج پکڑیں گے, آپ کی لاجک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو؟ سر جو بھی قانون کے دائرے میں اسے سزا دی جائے گی. ہٹلر کا عمل اور ہے, میرے سوال کا اس سے تعلق نہیں. ارے میرے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا. میرا سوال یہ ہے, آپ لاجک آدمی ہے نا, اگر ہٹلر کو پکڑیں گے تو اس کو سزا ملنا چاہیے نا دنیا میں. جی, جو ایک اسٹیٹ نے طے کی ہے قاتل کی, وہ اسے سزا ملنی چاہیے. ایک قتل کے مطابق ایک, باقی جو 5 ملین کا کیا حساب ہے؟ انہیں جسٹس نہیں ہے. برابر, آپ کو ماننا پڑے گا اگر پولیس ہٹلر کو پکڑتی تھی, اس کو موت دیتی تھی, یہ جسٹس ہے کیا نہیں جسٹس ہے؟ نہیں جسٹس ہے. آپ کے حساب سے 1 = 6 ملین, آپ کا میتھ بہت ویک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت نمبر 53 کہ اگر جو لوگ اللہ کے آیتوں میں نہیں مانتے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گا, اور جتنے بار سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 53 نے 56, جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار ان کو نئی چمڑی دی جائیں گی. آج سائنس کہتی ہے کہ درد ہونے کے لیے چمڑی کے اندر پین ریسپٹر ہوتے, پہلے نہیں پتا تھا. اگر آپ کو سیویئر برن انجری ہوتی ہے تو ڈاکٹر لیتا ہے سوئی اور ٹوچتا ہے. اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر خوش ہے, یعنی ڈیپ انجری نہیں ہے. اگر آپ کو درد نہیں ہوتا ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے, ڈیپ برن انجری, آپ کی احساس کے پین ریسپٹر مر گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو لوگ اللہ کے خلاف ہے اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے, اور جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہٹلر کو 6 ملین ٹائم 12 ملین ٹائم بھی جلا سکتا ہے. یہ عدل ہوا کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہمارے دنیا میں عدل ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے چوری خراب ہے تب مانے گا جب اس کو معلوم پڑے گا آخرت ہے, ہمارا خالق ہے. وداؤٹ آخرت آپ ثابت ہی نہیں کر سکے چوری کرنا خراب ہے, بلاತ್ಕಾರ کرنا, زنا بالجبر کرنا حرام ہے. آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. صرف اس وقت ثابت کر سکتے جب آپ کو پتا لگے گا کہ آخرت ہے. ہماری اس زندگی کے علاوہ اور ایک زندگی ہے, اور یہ عدل صرف تب ہو سکتا ہے جب ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. اور صرف خالق ہونا کافی نہیں ہے, خالق کے ساتھ آخرت ہونا ضروری ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکیں گے کہ چوری کرنا خراب ہے, بلاತ್ಕಾರ کرنا, زنا بالجبر کرنا حرام ہے, کسی کا قتل کرنا حرام ہے. ثابت ہی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس لاجک ہی نہیں ہے. تو آپ جو بات کر رہے 4 سال سے خوش ہے, آپ کی خوشی ٹیمپرری ہے, مین خوشی تو ہے آخرت. جیسا بولتے نا آپ کے لیے جنت ہے, بالکل صحیح ہے وہ حدیث اللہ کے رسول کی. کافر کے لیے جنت ہے دنیا, تیرے لیے واجب یہ دنیا جنت ہے, میں مانتا ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اگر تو کہتا ہے کہ تو اسلام چھوڑ دیا مطلب کافر ہے, مرتد ہے, برابر کی نہیں, اور ڈنکی کی چوٹ پہ اعلان کر رہا ہے, شرم بھی نہیں آتی. ایک تو غلطی کرتا ہے, ڈنکی کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے تیرے لیے یہ دنیا جنت ہے, ہمارے لیے قید ہے. آخرت میں دوزخ میں جب جائیں گا انگار لگیں گی پاؤں پہ تو برین ول بوائل, بھیجا ابلے گا. یہ حدیث بالکل واجب بھائی, میری درخواست ہے آپ قرآن ترجمے سے پڑھیے اور اس کے اوپر تدبر کرو. اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے سمجھ جانے کا. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ 4 سال سے میں خوش ہوں. جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے یہ حدیث تم پہ ہو بہو فٹ ہوتی ہے. میری درخواست ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو اور ہر آیت کو سمجھ کے پڑھو, وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تم کو ہدایت دے. اگر آپ معافی مانگیں اور صحیح راستے پہ آگے, پھر سے ماننے لگے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے, اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انشاءاللہ آپ کو آخرت میں نجات ملیں گی. ورنہ آپ خسارے میں رہیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت ملے اور اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ صحیح راستے پہ آ جائے. پھر سے جتنے بینک ہے ربا بینک دنیا کے, اس کے سرتاج ہے یہود. آپ ان سے اگر لون لیں گے ربا پہ, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا. لیکن ہمارے مسلمان ملک کو پیسے سے زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ. آپ کو اچھی گاڑی چاہیے, اچھا محل چاہیے, اچھی گاڑی آخرت میں کرو نا. میرا نام سمیرا بشیر ہے, میں پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہود پر ذلت اور محتاجی کا ٹھپا سٹیمپ لگنے کے باوجود موجودہ امریکی ریاست اسرائیلی ریاست کے قیام اور اس کی مالداری ہونے کی اور پوری دنیا پہ اسرائیل کا رول کرنا کی اصل وجہ کیا ہے؟ بہن جی آپ کا نام کہیں گے, ذرا نام آپ اسے دہرائیں گے. سمیرا بشیر میرا نام ہے. کیا نام ہے؟ سمیرا بشیر. سمیرا, کوئی بھی غیر مسلم خاتون ہے ادھر؟ کوئی بھی غیر مسلم خاتون ہے نہیں سر. جو سوال پوچھنا چاہتی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ اپنا سوال دہرائیں گے ذرا, لیکن آستے سے, جی, کیونکہ مائکرو فون ذرا صحیح نہیں ہے. قرآن کا یہود پر ذلت اور محتاجی کا جو سٹیمپ لگانے کے باوجود موجودہ اسرائیلی ریاست کے قیام اور اس کے مالدار ہونے کی ذرا وجہ. سننے میں نہیں آ رہا, کل یہ سننے میں آ رہا ہے قرآن مجید میں یہود کا سٹیمپ. آپ ذرا آستے سے بات کریں, آپ میں بھی صحیح بات کریں, لیکن مائکرو فون سننے میں نہیں آ رہا ہے اسپیکر سے. آپ پھر سے سوال دہرائیں گے. قرآن کا یہود پر ذلت اور محتاجی کا سٹیمپ لگانے کے باوجود اسرائیلی ریاست کا قیام اور اس کے مالدار ہونے کی وجہ اور پوری دنیا پہ رول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر میں نے آپ کا سوال صحیح طریقے سے سنا, آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں یہود کے بارے میں لکھنے کے باوجود یہود کیوں دنیا کو رول کر رہے ہیں, برابر؟ جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں خواتین سے, مجھے پتا نہیں خواتین بھی اس تقریر میں موجود ہے. جب میں نے آپ کا خیر مقدم کیا تو میں نے خواتین کا نام نہیں لیا, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں خواتین میرے بہنوں کو خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मैं माफी चाहता हूं, मुझे पता नहीं था क्योंकि मजमा इतना बड़ा है, मुझे दिख रहा नहीं है. आपका सवाल था कि कुरान मजीद में यहूद का जिक्र करने के बावजूद, उनका स्टैम्प लगने के बावजूद क्यों यहूद पूरे दुनिया पे रूल कर रहे हैं. जी सर. मेरे इल्म के हिसाब से यहूद बिल्कुल सही सारी दुनिया पे रूल कर रहे हैं, और रूल कर रहे दो वजह की वजह से. नंबर वन, वो सारी बैंक, जितने बैंक है रिबा बैंक दुनिया के, उसके सरताज है यहूद. आप जितने बैंक देखेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या जितने अमेरिकन बैंक है, आप सुनेंगे फोर्ट नॉक्स, आप समझेंगे ये यूएसए गवर्नमेंट का है. ये गवर्नमेंट का नहीं है, यहूद का है. तो यहूद ने पूरी दुनिया को रिबा के अंदर डुबा दिया, रिबा लेने से, इंटरेस्ट लेने पे मजबूर किया. आपको बोलते हैं इस्तेमाल करो क्रेडिट कार्ड, 1 महीने में वापस दो, नो प्रॉब्लम, 1 महीने से ज्यादा हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. अब इंसान जब इस्तेमाल करता है क्रेडिट कार्ड, पहले बार बराबर, बाद में अरे क्या फर्क पड़ता है, और वो रिबा में डूब जाता है. इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड आईएमएफ क्या करती है? कई मुल्कों को लोन देती है, लोन दे के आपसे गलत काम करवाती है. हम लेते क्यों लोन उनसे? अल्लाह जब बोलता है रिबा हराम है, आप उनसे लोन लेते क्यों? आप उनसे अगर लोन लेंगे रिबा पे, अल्लाह ताला आपकी मदद नहीं करेगा. लेकिन हमारे मुसलमान मुल्क को पैसे से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा पैसे से मोहब्बत है. तो हम खुद मुसलमान मुल्क जाते हैं यहूद के पास. कुरान की आयत है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82. क्या अहले किताब में से सबसे ज्यादा मोहब्बत जो करते हैं मुसलमान से, वो है जो कहते हैं कि मैं नसारा हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, और सबसे ज्यादा दुश्मन है यहूद. कुरान की आयत है. फिर भी हम कुरान की आयत को नहीं पढ़ते, या पढ़ते हुए समझते कि हमें पैसा बचा सकता है. हमारे पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, ये पड़ोसी मुल्क मतलब आपका नजर एक तरफ ज्यादा हटा के जाए, पड़ोसी मुल्क दूसरे पड़ोसी मुल्क भी है. अमेरिका को 20 साल से ज्यादा नाक में दम लेके आए, लेके आए कि नहीं? अफगानिस्तान का जिक्र कर रहा हूं, इंडिया का नहीं. पड़ोसी मुल्क बोले तो पहला रशिया है, उन पे हमला किए तो अमेरिका ने उनकी ट्रेनिंग दी. फिर अमेरिका ने जब हमला किया, उनने बोले हम हमारे धरती पे किसको आने नहीं देंगे. अफसोस की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका ने ट्रिलियन ऑफ डॉलर खर्चा की 20 साल तक, फिर भी उन्हें मैदान छोड़ के भागने पड़ा. क्यों? उनके पास अल्लाह की मदद थी. तादाद में कितने? 35 या 36 मिलियन. कई मुल्क के जो उससे ज्यादा है तादाद में, है क्या नहीं? है क्या नहीं? लास्ट ईयर जितनी करेंसी दुनिया की थी, सबसे बेहतरीन करेंसी थी अफगानिस्तान की. क्यों? वो डॉलर में डील ही नहीं करते. उनको आईएमएफ से नहीं चाहिए. अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है हमारा. अल्लाह ताला जानना चाहता है कि आप किसकी मदद चाहते हैं. मैंने कहा ना ये दुनिया इम्तिहान है. ये सारी दुनिया जो जिंदगी हम जी रहे इम्तिहान है. तो ये इंटरेस्ट के जरिए वो सारे इंसानों को अपने चुंगल में गिरफ्त करना चाहते हैं. हम तिजारत करते तो बैंक से लोन लेंगे, लोन ले लेंगे तो क्या होगा, क्या मर जाएंगे. आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा महल चाहिए, अच्छी गाड़ी आखिरत में करो ना. तो ये अल्लाह ताला का निजाम है. अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है हमारा. और अफसोस की बात है, अल्लाह ने हम मुसलमान मुल्क को इतना पैसा दिया है, इतना पैसा दिया है. मेरे इल्म के हिसाब से टॉप 100 रिचेस्ट इंसान दुनिया में 95% से ज्यादा मुसलमान है. ये बिल गेट्स, जेफ बेजोस अपने खीसे में रखेंगे इनको. इलॉन मस्क, एक मुसलमान गल्फ कंट्री में, उसकी प्राइवेट कंपनी है. इन लोग रिच है क्योंकि लिस्टेड कंपनी में. मैं खुद जानता हूं, बाकी लोग को छोड़ो, मैं खुद जानता हूं, मैं शहादत देता हूं, मैं कई मुसलमान को जानता हूं जो बिल गेट्स को एक खीसे में रखेंगे, इलॉन मस्क को दूसरे खीसे में. मैं खुद जानता हूं, मिल चुका उनसे. अल्लाह ने हमें पैसा दिया, काला सोना दिया.
हम क्या करते, यहूद की बैंकों में रखते, फिर यहूद आपको कठपुतली की तरह नचाते, आप कुछ करेंगे तो हम पैसा ले लेंगे तुम्हारा। हमारे मुसलमान मर्द पे हमला करते, फलस्तीन पे, गाजा पे, क्या करते हम? कुछ नहीं। तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं हम? तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं? तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं? मैंने एक तकरीर की है, फिर से तकरीर क्या करूं, मैं मुकर्रिर हूं, जिसमें कहा गया है 15 नुक्ते उम्मत के लिए, फलस्तीन के लिए, और उसमें कहा मैं 14 पॉइंट, जिस तरीके से नाटो है, नॉर्थ अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 31 मुल्कों का अलायंस है, अमेरिका यूरोपियन कंट्री का, अमेरिकन कनाडा यूरोपियन कंट्री का। अगर आप एक मुल्क पे हमला करते, गोया कि आप सारे 31 मुमालिक पे हमला करते। हम मुसलमान क्यों ना मैक्टो बनाते, मुस्लिम ट्रीटी, मुस्लिम कंट्रीज ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? क्या आप एक भी मुमालिक, 57 मुल्क है जो मेजॉरिटी मुस्लिम है, क्यों नहीं अलायंस बनाते? अगर आप एक भी मुल्क पे हमला करेंगे, गोया के सब मुल्क, सब मुमालिक पे किए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम शहीद होंगे। मैं तो रोज दुआ करता हूं मेरे ताजुद में, अल्लाह मेरी माल और मेरी जान तेरे नाम पे कुर्बान हो। इंडिया में मैं हर रात ताजुद में दुआ करता था, तो 2016 में मुझे हिजरत करने पड़ा दावती काम की वजह से, इंडिया से मलेशिया। तो अल्लाह ने मेरी आधी दुआ सुनी, मेरे पूरे माल को इंडियन गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, आधी दुआ सुनी। इसीलिए जब मैं दुआ करता हूं, मैं कभी भी दुआ नहीं करता हूं कि माल वापस मिले। बोले क्यों नहीं? अरे दुआ क्या, माल जाए वापस मिले तो सवाब किधर मिलेगा? अभी तो 700 गुना मिल गया, मैं बेवकूफ हूं क्या माल के लिए दुआ करूं? अल्लाह ने क्या किया? नए धंधे शुरू किया, नया माल दे दिया मुझे। क्या किया? मैं समझा आखिरत में मिलेगा, दुनिया में शुरू कर दिया, नए धंधे, नई तिजारत, नई दौलत। तो इसीलिए जब लोग ने बोले कि पाकिस्तान में भाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, तो मैं बोला मैं तो सिर पे कफन बांध के लिख रहा हूं। उसका मतलब नहीं कि एहतियात नहीं लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा ऊंट को बांधो, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। तो ऊंट को बांध रहा हूं, माशाअल्लाह आपकी लाहौर की पुलिस से बहुत मैं मुतासिर हूं, लाहौर की। देखो अभी कोई भी पीछे नहीं चल रहा है। जिस टाइम मैं एयरपोर्ट से आया, माशाअल्लाह पूरे सिक्योरिटी के साथ, मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अल्लाह पे तवक्कुल वो भी करते, मैं भी करते, लेकिन एहतियात लेना चाहिए। लेकिन इतना एहतियात नहीं कि ऊंट को इतना कसो के मर जाए। आप मेरा दावती काम रोक देंगे, मैं दावत नहीं कर पाऊंगा तो जन्नत कैसे जाऊंगा? तो जी के क्या फायदा? तो मैं कहता हूं अगर ये आज के मुसलमान को ईमान हो जाए, हम यकसा हो जाए, एक हो जाए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा शहीद होंगे, और क्या होगा? जन्नत तो जाएंगे। जो जुल्म हो रहा है अपने मुसलमान भाइयों पे, अफसोस की बात है, जो हमारे बस में वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। हम अगर मैक्टो बनाएं और देखेगा यहूदियों का साथ नहीं दे, बिल्कुल यहूद कंट्रोल कर रहे बैंक से, नंबर 2 मीडिया से जितने टॉप मीडिया है, स्टार टीवी, फॉक्स टीवी, 20 का भी, मेजॉरिटी यहूद। रूपर्ट मर्डॉक का नाम सुने? रूपर्ट मर्डॉक, उसको बोलते हैं माहिर मीडिया का। तो यहूद लोग कंट्रोल कर रहे 2 चीज से, बैंकों से, रिबा से और मीडिया से। जब लोग मुसलमान होने लगे, जब देखने लगे लाइव जेनोसाइड सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया बैंड, मेरे अक्सर सोशल मीडिया बैंड है। जहां मैं फलस्तीन की बात करता हूं, मेरा ट्विटर बंद, मेरा इंस्टाग्राम बंद, 1 मिलियन 2 मिलियन बंद। फेसबुक अल्हम्दुलिल्लाह अब तक महफूज है, लेकिन सिर्फ 24 मिलियन। जाना चाहे 100 मिलियन के ऊपर, उसको शैडो बैन के, बंद नहीं, शैडो बैन मतलब रोक के रखेंगे, ज्यादा भागना नहीं चाहिए। सेम थिंग मेरा यूट्यूब, सिर्फ 4 मिलियन। अगर मेरा 100 मिलियन होगा तो जन्नत जाऊंगा मैं, बैन होगा तो जन्नत जाने के ज्यादा चांसेस, हाँ कि नहीं?
अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का। तो मीडिया का इस्तेमाल हमें करना चाहिए सही तरीके से अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए। हाँ, अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है, इतनी तादाद दी है, इतना पैसा दिया, हम गलत खर्चा कर रहे हैं। यहूद कितने फीसद है? कितने फीसद? बहुत कम। पूरे दुनिया में 16 मिलियन। आपके एक शहर में आ जाएंगे, कराची शहर में 16.495 मिलियन मुसलमान है 2024 के हिसाब से। हम अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे भरोसा करें और माने, अल्लाह ताला फरमाते एक ग्रेन, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 261 में, अगर आप एक ग्रेन अल्लाह के राह में देंगे, अल्लाह आपको 7 बूटे देंगे, 7 बूटे, हर बूटे पे 100 ग्रेन, यानी 700 गुना, 70,000% प्रॉफिट। वो मिनिमम है, अल्लाह और भी देंगे। अगर हमें यकीन है तो हम करेंगे ना। अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान दे रहा है, आपको माल दे रहा है, देखते हैं माल कितना खर्चा करते हैं आप। मैं हमेशा कहता हूं अल्लाह को पार्टनर बनो आपके धंधे में, आपकी तिजारत में। तिजारत में कभी कमी नहीं होगी। मैंने अल्लाह को पार्टनर बना, पूरा गया और ध्यान दे रहा है, क्या प्रॉब्लम ही नहीं। मैं सिर्फ 2 या 3 दिन देता हूं महीने में मेरी तिजारत के लिए। कितना? 2 या 3 दिन। करोड़ रुपए कमाता महीना, करोड़ रुपये। जरूरत ही नहीं, मुझे जरूरत है मेरे और बीवी को रहने के लिए $500। $500 ने 1.5 लाख रुपया, बहुत हो गया। करोड़ों रुपये दे रहा है हर महीना। अब अल्लाह के साथ अल्लाह को अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ। अल्लाह ताला फरमाते कौन है जो अल्लाह को लोन देगा, कर्ज देगा और अल्लाह उसे मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हालात है बहन इसके वजह से, क्योंकि हम मुसलमान कुरान और हदीस पे अमल नहीं कर रहे। अगर हम कुरान मजीद पे अमल करेंगे, जो आज मैंने तकरीर की उस पे अमल करेंगे और अल्लाह पे भरोसा करेंगे, आप क्यों बाकी यहूद पे भरोसा करते? क्यों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे भरोसा करते? क्यों? और आपके पास मिसाल है, मिसाल है कि नहीं? हो सकता है कि दुनिया में लोग उनको नीचा देखेंगे, लेकिन आखिरत में तो ऊपर है ना, हाँ कि नहीं? तो अगर हम कुरान पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई भी हमें जलील नहीं कर सकता है, कोई भी हमें हरा नहीं सकता है, कोई भी हमें डिफीट नहीं कर सकता है। और इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा, अल्लाह ताला का वादा है कुरान मजीद में 3 जगह, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरा नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरा नंबर 61 आयत नंबर 9, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे दीनों पे हावी हो जाए, चाहे वो क्रिश्चियनिज्म हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, सोशलिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, एथिज्म हो, कुल सब पे हावी होगा। और 2 जगह अल्लाह ताला फरमाते वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा, एक जगह कि अल्लाह की शहादत काफी है, और 2 जगह अल्लाह फरमाते वलो क़रियल मुश्रिकून, कितना भी मुशरिक ना चाहे तो फिर भी ये दीन गालिब होगा। और हदीस में आता है कि आखिरत के पहले हम मुसलमान सारी दुनिया पे राज करेंगे इंशाअल्लाह 7 साल के लिए। 7 साल के लिए हम देखना चाहते, जब अल्लाह ने वादा किया तो क्यों आप कुरान से दूर जा रहे? क्यों कुरान से दूर जा रहे आप? अभी कब ये होगा पता नहीं, 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लेकिन अल्लाह का वादा जरूर होने वाला है। हम सारी दुनिया पे इंशाअल्लाह अमन के साथ दुनिया पे रूल करेंगे। इसीलिए कुरान आलमी जरूरत है और हमें कुरान पे अमल करना चाहिए। दुनिया में भले आपको लगे नुकसान है, अल्लाह ताला फरमाते दुनिया चाहेंगे अल्लाह दुनिया देगा, आखिरत नहीं देगा। अल्लाह आखिरत अगर चाहेंगे अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। कोई नॉन मुस्लिम है माइक नंबर 2 पे? पहले माइक नंबर 2 को देखें। माइक नंबर 3 पे है। हाँ, 1 मिनट, पहले माइक नंबर 2 को कंफर्म करें। कोई नॉन मुस्लिम है? जी है, बिल्कुल है। ओके, अगर माइक नंबर 2 पे कोई नॉन मुस्लिम है तो पहले अपना नाम बताएं, अपना पेशा बताएं और मुख्तसर करके 2 से 3 सेंटेंस में अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। My name is Sam. I'm a freelancer. So my question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से साबित कर सकते क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मरा, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे और उठाए लेके, बराबर? Yes.
Do you want me to give the answer in English or Urdu? Whatever you want. ओके मैं पसंद करूंगा अंग्रेजी, लेकिन आवाम उर्दू को बेहतर जानती है, तो इंशाल्लाह मैं उर्दू में जवाब दूंगा। भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से, सिर्फ बाइबल से, Yes. बाकी कोई किताब से नहीं साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहि सलाम नहीं मरे, क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहि सलाम मरे। तो उनका चैलेंज है मुझसे कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहि सलाम नहीं मरे। मैं करूंगा, पहले मैं जरा कुरान का हवाला देता हूं आपके लिए, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157, उन्होंने कहा, यहूदों ने, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु यूसुफ़ इब्न मरियम, वो कहते हैं यहूद कि हमने कत्ल किया ईसा अलैहि सलाम जो मरियम अलैहि सलाम के बेटे थे। और कुरान में लिखा है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना उन्हें कत्ल किया ना सूली पे चढ़ा, वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये सिर्फ उनका वहम है। अगर जो भी इस बात पे इख्तिलाफ करता है वो बिल्कुल गलत है। तो कुरान की साफ आयत है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, क्या ईसा अलैहि सलाम का ना कत्ल किया गया ना सूली पे मरे। सलबुहु एक होता है क्रूसिफिक्शन और एक क्रूसिफिक्शन, CRUCIFIXION, मतलब क्रूसिफिक्शन, सूली पे चढ़ाना और मर जाना। एक होता है क्रूसिफिक्शन, CRUCIFICTION, फिक्शन मतलब कहानी। ये कुरान में लिखा है। कुरान सही है कि नहीं है उसको फिलहाल जरा साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब ने मुझसे सवाल किया है कि आप सिर्फ बाइबल से साबित करो। आप जानते हैं साइन ऑफ जोना? I do. माशाअल्लाह जानते हैं। साइन ऑफ जोना में लिखा है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहि सलाम, बाइबल में उसे कहा जाता है जोना को, कहा कि आप जाके दावत दो, लेकिन वो समझते हुए दावत दे के फायदा नहीं जोपा में, तो वो एक जहाज पे जाते हैं दूसरे जगह, कि वो समझते इनको दावत देना फायदा है नहीं, एकदम जाहिल लोग समझेंगे इन्हें। तो वो क्या कहते हैं, वो करते हैं एक बोट, एक सफीना में दूसरी जगह जाते हैं, और आता है स्टॉर्म। और उस टाइम लोग समझते हैं कि अगर कोई अपने मालिक की बात नहीं मानता इसीलिए स्टॉर्म आता है। ये बाइबल में लिखा ही क्या नहीं, साइन ऑफ जोना है ना? Go on. I'm listening. जानते क्या नहीं साइन ऑफ जोना? I know. साइन ऑफ जोना 1.5 पेज की किताब है, बुक ऑफ जोना। अब बाइबल में पढ़ेंगे 1.5 पेज की किताब है। तो यूनुस अलैहि सलाम जिसे कहते हैं जोना बाइबल में, जब स्टॉर्म आता है वो अल्लाह के पैगंबर से बोलते मेरी गलती है। तो उस वक्त का माशरे का जो उसूल था, जो भी अपने मालिक के पैगाम के खिलाफ भाग जाता है उसको बांधना चाहिए रस्सी से और दरिया में फेंकना चाहिए। तो वो दरिया का स्टॉर्म, जो दरिया का जो स्टॉर्म को क्या कहेंगे उर्दू में? तूफान। माशाल्लाह, कभी कभी मेरा कंप्यूटर उर्दू है, इंग्लिश कंप्यूटर। तूफान आ गया था, तो तूफान आता है तो यूनुस सल्लल्लाहु अल्लाह के पैगंबर बोलते मेरी गलती है। तो जब वो कहते हैं मेरी गलती है और वो वॉलंटरी करते हैं कि मुझे फेंको, उनको बांधने की जरूरत नहीं, हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं, तो यूनुस अलैहि सलाम जोना को पकड़ के दरिया में फेंकते। सही है क्या नहीं? ये बाइबल में लिखा है क्या नहीं? बुक ऑफ जोना चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है, लिखा है क्या नहीं बाइबल में? बिल्कुल सही। जब वो जोना को, यूनुस अलैहि सलाम को दरिया में फेंकते, यूनुस सलाम जिंदा थे क्या मरे थे? जिंदा थे, बिल्कुल सही। वो दरिया में जाते, उस यूनुस अलैहि सलाम को एक मछली आके निगल लेती है। जब मछली निगलती है, पहले जरा मैं हवाला दूंगा कि ईसा अलैहि सलाम कहते हैं बाइबल में कि यू हैव आस्क्ड मी फॉर साइन, नो साइन शैल आई शो यू एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना। जब यहूदा के पूछते आपका क्या सबूत, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है? तो वो कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the belly of the earth.
यानी ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि हमें मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। और जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे 3 दिन और 3 रात, उसी तरीके से मैं धरती में रहूंगा 3 दिन और 3 रात। बराबर। अभी साइन ऑफ जोना में जब मछली आके निगलती है यूनुस अलैहिस्सलाम को, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जोना जिंदा थे या मुर्दा थे? जोना जिंदा थे। माशाअल्लाह। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के गोल घूमती है। 3 दिन और 3 रात तक जोना जिंदा थे या मर जाते? जिंदा थे। जिंदा थे। अगर मरेंगे तो मौजूदा नहीं ना। हम इंसान जब दरिया में फेंकेंगे तूफान है, मर जाएगा। जोना जिंदा थे तो मौजूदा है। मछली आके निकलती, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है तो मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के घूमती है, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है, मौजूदा के मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन के बाद, 3 रात के बाद मछली जोना को उल्टी करती है शोर के ऊपर, समुद्र के किनारे एक बीच के ऊपर जोना को लाके उल्टी करती है। जोना जिंदा थे क्या मर जाते? जोना जिंदा थे। जिंदा थे। मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के अंदर हूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपके बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लगाया गया था, लिखा है क्या नहीं? जी लिखा। अभी सूली पे निकालने के बाद उन्हें रखा जाता है सिपलकर। सिपलकर मतलब एक कब्र। पुराने जमाने में कब्र ऐसी होती थी कि बड़ा रूम रहता था। आजकल जैसे मैं मुसलमान के वैसा नहीं, बड़ा रूम जिसके अंदर लंबी कब्र रहती है, आदमी आराम से रह सकता है। तो सिपलकर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम थे। बाइबल में लिखा है क्या नहीं? लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वो 100% गलत है। मैं जवाब दिएगा अभी तक। आपने यही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब यह है कि जीसस भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में, मैं क्या फरमाता हूं? सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। अच्छा करेक्ट करो। मैंने कंप्लीट ही नहीं किया ना। ओके, मैंने कंप्लीट किधर किया? आपने जवाब ही नहीं दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, जिंदा थे या मुर्दा थे? ही वाज डेड। अने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना के जैसे नहीं थे। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे, अभी आप कहते मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दा थे। ईसा अलैहिस्सलाम। अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मुझे करेक्ट करने दो। कंप्लीट कर लिया। मैं जानता हूं कि आपने मेरी कसर सुन चुके, आप तैयार हो क्या है? मैं आपको मौका दूंगा, पहला मुझे बात तो कंप्लीट करने दो। बात ही कंप्लीट में करेक्ट हूं। मैंने गलती किधर की? आपको जवाब देने का, मुझे थोड़ी। आपने कहा क्या जोना जिंदा थे, कहा कि नहीं? जी जोना जिंदा थे। आपने कहा कि जीसस क्राइस्ट मर गए, मैंने कहा कि आपने कहा? मैंने कहा। तो गलती भाई का फ्रॉम एग्जांपल। तो मेरी गलती किधर? आप जवाब दे रहे हो, मैं गलती कर रहा हूं। इस प्रोफेसी को समझने में आपकी गलती है। अरे भाई जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। यू कैन ट्राई। ट्राई की बात नहीं, जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, दैट्स अ साइलेंट पॉइंट फ्रॉम दिस स्टोरी। जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें। नहीं, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, तो जवाब जब आप दे रहे हैं, आप मुझे बोले मैं गलत हूं। अजीब है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो, बोलते मैं गलत हूं। मैं अगर आपके जवाब से इख्तिलाफ करूंगा फिर आप बोल सकते हैं ना। इख्तिलाफ करने के पहले आप बोलते यू आर रॉन्ग, यू आर जंपिंग द गन। इंग्लिश में जानते हैं जंपिंग द गन क्या कहते हैं? You're doing the same. Sorry? You're doing the same. You are doing the same. That's not the point from the prophecy which you're highlighting. The point is the 3 days and 3 nights idiom which is used in the Old Testament and the book of Ezra and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the one part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah means? जिस तरीके से जोना था उस तरीके से ईसा, वो 3 दिन और 3 रात पे बाद में आएंगे।
आप लाइन से जाओ ना, जंपिंग द गन मतलब उड़ी मारना, लाइन से जाओ ना, 1 2 3 4 5, आपको डायरेक्ट जाने का मेडिकल कॉलेज में, पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करो, सेकंड स्टैंडर्ड तो पास करो। आपको अगर पता नहीं जंपिंग द गन किसको कहते हैं तो आपकी अंग्रेजी कमजोर है। क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने? जिस तरीके से जोना, तो जिस तरीके का भी तशरीह हो रही है, 3 दिन और 3 रात तो बाद में आएगा। आप समझते हैं ना उर्दू? क्या मैं इंग्लिश में बात करूं? समझता हूँ, समझते हैं ना? तो अब आप जंप क्यों कर रहे हो भाई? एक एक प्रोफेसी को लाइन से लो ना। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ जोना की निशानी दिखाऊंगा। यहां तक के समझे आप? समझे क्या नहीं यहां तक के? जी जी समझ गए। उसके बाद और जिस तरीके से का मतलब क्या? जैसे कि जोना मछली के पेट में, आगे की बात बाद में करेगी, उस तरीके से मैं 3 days and 3 nights आगे आएगा। पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करे। आप मुझे बताइए, आपने खुद कहा कि जोना जिंदा थे, मैंने कहा कि आपने कहा? बाइबल में लिखा है जोना जिंदा थे। हाँ, लेकिन आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा ना। जी जी। अच्छा, फिर मैंने पूछा आपको ईसा अलैहिस्सलाम कैसे थे, जिंदा थे या मुर्दे थे? वो मुर्दा थे। बाइबल में किधर भी नहीं लिखा मुर्दा थे। आप एक आई कैन प्रूव यू रॉन्ग। बाइबल के अंदर एक रेड लेटर, वो पॉल कहता है, दूसरे लोग कहते हैं, सबूत नहीं है। अच्छा सुनिए, अगर मान लो आप सही है, अगर बाइबल में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे, अने ईसा अलैहिस्सलाम नौज बिल्लाह झूठे हैं, नौज बिल्लाह, माज़अल्लाह, ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेसी को लेके। ना तो जीसस गलत है और ना ही मिसाल गलत है। उन्होंने बोला कि जिस तरह जोना 3 दिन मछली के पेट में रहे, वो कब्र में रहेंगे। और एक नॉलेजेबल और एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र के अंदर किसको रखा जाता है। हाँ, कब्र में मुर्दे को रखा जाता है, राइट, बराबर। तो क्या जोना मुर्दा था? नहीं, मुर्दे को रखा। सुनिए, ये आम आदमी है, आम लोग को कब, आम इंसान मुर्दे को जाला जाता है, लेकिन जोना अल्लाह के रसूल थे, वो जिंदा बच गए तो ही मौजूदा रहेगा ना। तो उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे। अगर मुर्दे को कब्र में डाला और ईसा अलैहिस्सलाम को डाला तो मौजूदा है क्या? सर मौजूदा यहाँ पे पॉइंट नहीं है। सुनिए मेरी बात। अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर गए तो निशानी क्या बात है भाई? मौजूदा तो है नहीं, क्या बेवकूफ बना रहे दुनिया को? आपके हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, और इसकी तो मैं जब कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर है। हम उसको आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उसको जलील करते हैं। अरे एक सेकंड छोड़ो, आधे घंटे से बात कर रहे, 1 सेकंड क्या? 1 सेकंड तो हो गया, 1 सेकंड ना, चलो 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड, खत्म। क्या चिट्टी क्या देख रहे? आपने 1 सेकंड मांगा, मैंने 1 सेकंड दिया कि नहीं आपको? मैंने 1 सेकंड दिया कि नहीं? सच बोलो, आप अगर सच्चे इंसान है, मैंने 1 सेकंड दिया कि नहीं आपको? हाँ क्या नहीं? सारे 1 घंटे को भी कहते हैं आपके जबान में, मेरे जबान में नहीं। 1 सेकंड 1 घंटा बोलते, यही तो बेवकूफ है आप, बेवकूफ आप है। 1 सेकंड 1 घंटा को कहते हैं, वाह वाह वाह। ये कौन से कक्षा में आप पढ़े? कौन से स्कूल में सिखाया जाता है 1 सेकंड 1 घंटा है? क्या इंग्लिश है आपकी? किधर से आप पढ़े? पाकिस्तान के स्कूल से पढ़े? कौन आपको डिग्री दिया है? कौन आपको डिग्री दिया है? सर आप अपना जवाब कंटिन्यू करें। आप क्या स्कूल पढ़े? स्कूल पास किया आपने स्कूल पास किया? हाँ क्या नहीं? आई डिड। कौन से स्कूल में पास किया आप? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज? स्कूल को कॉलेज बोल रहे हैं, मैं कौन से स्कूल पास किया, कॉलेज की बात करते? यू आस्क अबाउट माय डिग्री। मैं आपको पूछा, वो पहले पूछा, जवाब नहीं दे, कौन से स्कूल से पास किया? सर यू वेस्टिंग टाइम, जस्ट गो टू द पॉइंट प्लीज। आपने गलत बोले, हाँ क्या नहीं पहला बोलो, नहीं तो छोड़ दो माइक्रोफोन। 1 सेकंड आपने गलती की, मानेंगे तो आगे जाऊंगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो बेवकूफ है, और मुझे बेवकूफ से बहस नहीं करना है। कुरान में लिखा है जाहिल इंसान आता है तो कालू सलामा। आप अगर गलती मानते मैं आगे बढ़ूंगा, गलती नहीं मानते तो छोड़ दो माइक्रोफोन। मैं बेवकूफ इंसान नहीं हूं। आप मानते आपने गलती की तो आगे बात कर सकते, नहीं मानते तो माइक्रोफोन छोड़ दीजिए। मैं 1 सेकंड को 1 घंटा नहीं मानता हूं। दैट्स फाइन, आप कंटिन्यू करें जो मैं सुनना चाहता हूं। आप मानते हैं कि आपने गलती की है? सर मैंने पंजाबियों की मिसाल दी है जो कि गलत है, दैट्स फाइन, आई एम रॉन्ग। हाँ ऐसा बोला, अच्छी लेकिन से बात करो। हर पंजाबी जानता है कि ये सच है, हम लोग ऐसा बोल लेते हैं। हर पंजाबी, हर पंजाबी, ओ भाई पंजाब में क्या 1 सेकंड को 1 घंटा बोलते हैं? हाँ क्या नहीं बोलते हैं सर?
ये बोलते हैं 1 सेकंड में घर आ रहे हैं लेकिन जाते हैं 1 घंटे में। वो गलत बोलते ना, अगर कोई गलत करते तो आप भी उसको 1 सेकंड में मैं कभी नहीं बोलता हूं। अगर वो बोलते हैं और गलत करते हैं आप दोहराते वो सही थोड़ी। कितने लोग ऐसी चीज करते। हम पंजाबी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ क्या बात कर रहे, हम पंजाबी बात कर रहे, हम इंग्लिश बात कर रहे ना। सर कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या, आप लेकिन गलत बोल रहे, गलती का इकरार करेंगे तो आगे जाएंगे ना। आई डिड ऑलरेडी। हाँ, तो अभी मैं कह रहा हूं आपसे, यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना आप बोलते कि कब्र में मुर्दे को डाला जाता है, तो क्या जोना मुर्दे थे? चलो मान लिया आपकी बात, कब्र में मुर्दे को डाला जाता है, क्या जोना मुर्दे थे मछली के पेट में? हाँ क्या नहीं? अरे दैट्स नॉट द पॉइंट। क्या आप एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट कर, साइलेंट पॉइंट को नहीं हाईलाइट कर रहा हूं मैं, एक अहम पॉइंट को हाईलाइट कर रहा आई हूं। कैन प्रूव यू रॉन्ग इन अ सेकंड इफ यू लेट मी स्पीक। वापिस से बात कर रहे, सेकंड गलती मानने के बाद फिर से गलती करते, लेट मी स्पीक। ये बहस करने का है, आप ऑडिटोरियम लो, मेरे बहुत से स्टूडेंट आपके साथ बहस करेंगे। आप मलेशिया आओ, मलेशिया आओ, मेरे बहुत से स्टूडेंट है यहाँ। बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं किससे बहस करने, सवाल जवाब का सेशन है। मैंने इतनी मोहब्बत से मेरे गैर मुस्लिम भाई को वक्त दिया, इतने लोग, कितने हजारों लोग ठहर रहे, आप इनका वक्त जाया कर रहे। मैं इतने मोहब्बत से इजाजत दे रहा हूं, गिव मी 1 सेकंड, ये अकड़पन आपका। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, 1 सेकंड में गलत साबित करूंगा। कितने बार आपने दोहराया। आप जब साइन को नहीं जानते, आप वक्त जाया कर रहे लोग का। हम लोग को वक्त जाया करने का वक्त नहीं है। सर बाइबल को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? यस यू डिड। क्या दिया बोलो, मैंने क्या गलती किया बोलो? साइन ऑफ जोना में एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। हो साइलेंट पॉइंट, जो प्रोफेसी है उसको आप बता नहीं रहे हो, जो उसमें पॉइंट नहीं है अच्छा, उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें लिखे ना साइलेंट पॉइंट? कौन से बाइबल में लिखे है साइलेंट पॉइंट? बताओ आपको कौन से, आप रेफरेंस दो, बाइबल का रेफरेंस दो। सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये डिबेट का वक्त नहीं है, ये वक्त इतना लेट है, 12 बजने को आ रहे, आप इतना वक्त जाया कर रहे, कोई इल्म हासिल नहीं हो रहा है। साइलेंट पॉइंट है, किधर लिखा है बाइबल में साइलेंट पॉइंट? ये तुम्हारी बेवकूफी है, तुम्हारी बेवकूफी है। मैंने बड़े बड़े पादरी से डिबेट किया है। तुम क्या पादरी है क्या? पादरी को डिबेट किया, कितने डिबेट मौजूद है। पादरी का काम डिबेट नहीं होता। अरे भाई छोड़िए, आप तो एकदम, क्या बोलूं मैं, मुझे वक्त ही नहीं बोलने के लिए। आप एक, सर आधे घंटे में मैंने 28 मिनट आपको सुना, आपने मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया। हाउ कैन आई प्रूव यू रॉन्ग? चलो 2 मिनट दिया, शुरू करो, शुरू, चलो 2 मिनट, 1 मिनट 55 सेकंड बाकी है। मैं आपको जीसस की कोटेशन देता हूं। मार्क, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21, he must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders and the chief of the priest and the teacher of the law, that he must kill him and he will on the 3rd day he will raise up again. So जीसस की बात मानो या आपकी बात मानो, जो मिसाल आपने दी है उसमें टाइम पीरियड ईडियम है जिसको कहते हैं 3 days और 3 nights, कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं 3 दिन कब्र में रहूंगा। एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र में किसको रखा जाता है। जो पॉइंट आप बता रहे हैं वो म्यूट है, वो हाईलाइटेड नहीं है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर देता हूँ कि एक बंदे का कलर बहुत ज्यादा सफेद है, मैं उसको कहता हूँ बर्फ की तरह सफेद हो, और एक बंदे की बॉडी ठंडी है, उसको कहता हूँ मैं आपके बर्फ की तरफ ठंडे हो। जहां पे मैं कलर को रेफर कर रहा हूँ वहां पर मेरा दूसरा पॉइंट नहीं है, और जहां पे मैं टेम्परेचर को रेफर कर रहा हूँ वहां पे मेरा दूसरा पॉइंट साइलेंट है। जीसस आपको 3 days और 3 nights कब्र में रहने की बता रहे हैं, और आप एक म्यूट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि जोना वहां पे दुआ कर रहा था, जोना ने वहां पे खाया था कि नहीं पिया था। दैट्स नॉट द पॉइंट फ्रॉम दिस एग्जांपल। So I gave you the Jesus quotation. Jesus did confirm he will die and he will raise up again. So you're wrong. अभी भी 15 सेकंड बाकी है। I give you my 15 seconds. खत्म? अभी आप चुपचाप सुनेंगे मुझे? Yes. इसको 2 मिनट दिया कि नहीं? मैंने कब कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे। वो जब हर इंसान मरेगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार दुनिया में आएंगे जरूर मरेंगे। मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? आपको पढ़ने नहीं आता है बाइबल। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा साइन ऑफ जोना में कि आपको मैं कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम जोना मछली के पेट में थे,
उस जो आपने रेफरेंस कोट किया उसमें लिखा था कि ये साइन ऑफ जोना है? नहीं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर जाते तो मौजूदा है ही नहीं, वो पैगंबर है ही नहीं। अगर लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा कि नहीं मरेंगे? हर इंसान मरेगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुरान की आयत है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85। आपको मैंने कभी कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम वापिस आने वाले, वापिस आने के बाद जरूर मरेंगे। मैंने कब अभी चुप बैठिए, अभी आप चुप बैठिए, ये बहस करने का मौका नहीं। इतने प्यार से आपको बोलने का मौका दिया, मैं आपको मेरा 15 सेकंड दे दिया। अभी आप चुप बैठिए, चुप बैठिए, सुनिए, मानिए का मानिए, नहीं तो जाइए। हम लोग का वक्त में जाया कीजिए। एक हद होती है सब्र की, इन्नल्लाह मा हद होती है। लेकिन सब्र करके लोग को इतना वक्त जाया कर रहे, नहीं 2 जमा 2 5, 2 जमा 2 5, क्यों? क्या मैं सुनते रहूं क्या? सर ये पुरानी मिसाल होगी। आप क्यों बात कर रहे हैं? चुप बैठेंगे आप जरा, आप चुप बैठेंगे। इसका माइक्रोफोन को बंद कीजिए, इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए पहले। वॉलंटियर्स प्लीज इनको रोकें। इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए, ये अपना वक्त जाया कर रहा है। ये सब लोग को 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है। अगर बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? लेकिन ये जब ईसा जब उनसे कहते हैं कि शो अस सम साइंस, कुछ मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा। अगर कब्र में डालने का मर गया तो मौजूदा होता है क्या? नहीं होता। मौजूदा होता है क्या? नहीं होता। मौजूदा कब होगा? जब कब्र में जिंदा है। इसको इतना पता नहीं कि मौजूदा कब्र में किसको डालते, मुर्दे को डालते, तो मौजूदा हुआ ही नहीं। अगर यूनुस सलाम भी मर जाते थे और फिर जिंदा होते थे तो बोल सकते थे हाँ भाई ईसा अलैहिस्सलाम भी मर गए और जिंदा हुए। बाइबल में का लिखा ही नहीं। साइलेंट पॉइंट। क्या साइलेंट पॉइंट भाई? लोग को क्या बेवकूफ बनाने है? क्या साइलेंट पॉइंट? साफ है, एक बेवकूफ को भी समझ में आता है, आपको नहीं समझ में आता, मैं क्या करूं? कुरान कहता है कालू सलामा, आप उनको सलाम बोलो, आप पे अमन रहो। तो ये जो पॉइंट है यूनुस अलैहिस्सलाम का, साइन ऑफ जोना, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम का साइन ऑफ जोना, जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात थे, उसी तरीके से मैं जमीन में 3 दिन और 3 रात रहूंगा। बाकी लोग तो समझेंगे, ये आदमी तो क्या वक्त, बाकी लोग को तो समझाओ। यहाँ के मुसलमान भाई लोग ने बाइबल तो नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158, वमा कतलुहु वमा सलबुहु 157। ना उन्हें का कत्ल किया गया, ना उनको सूली पे चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम। अगर जो भी इसमें डिफर करता है वो गलत है। और अल्लाह ने वर्स नंबर 158 सूरह निसा चैप्टर 4, अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। तो ये हूबहू बाइबल से मैच करता है। बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना, हमारे ईसाई भाई ने क्या बोला? जिंदा जिंदा जिंदा, मैं थोड़ी बोला। तो अगर यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे, अगर ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे पैगंबर थे, उनको भी जिंदा होना चाहिए। ये बोलता मर गए, वो कहते कि ईसा अलैहिस्सलाम झूठे। अच्छा, अगर सच्चे तो मौजूदा किधर रहा? तो साफ तौर पे ये क्लियर है, क्या ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे? वो जिंदा थे। और साइन ऑफ जोना, अगर हम बोलते मुर्दा थे, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला। जैसा ये कहते 1 सेकंड 1 घंटा है, पंजाब में होगा, मैं तो भाई पंजाबी नहीं हूं ना। और ये किताब जो कुरान है सारे आलम के लिए, सिर्फ पंजाबी के लिए नहीं, या सिर्फ हिंदुस्तानी के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी के लिए नहीं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, सारे आलम के लिए। तो अगर आप बाइबल को सही नजर से पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, खुदा नहीं थे, खुदा के बेटे नहीं थे। ये कौन कहता है? चर्च कहती है। चर्च कहती है, और ये बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च की बात को मानते। हम जब कहते हैं करने का, तो आपके पादरी को डिबेट पे लेके आओ ना। कितने पादरी है, कितने प्रीस्ट है दुनिया में, कितने ओरेटर है, कितने डिबेटर है जो लाख का मजमा इकट्ठा कर सकते हैं। अगर दम है तो डिबेट करो ना। जो लोग शोहरत चाहते, मुझे मैं डॉक्टर नाग से डिबेट करूंगा, क्या मैं पागल हूं आपसे डिबेट करूं?
अगर मोहम्मद अली के आशीष के लिए एक बच्चा बोलता डिबेट करूंगा और मोहम्मद अली एक मारेंगे मर जाएगा, तो लोग बोलेंगे अरे बेचारे ने मारा, बच्चे को मारा, बराबर कि नहीं? बोलेंगे क्या नहीं? अरे बच्चे को मारा। मैं वो इल्जाम नहीं चाहता हूं। अरे टक्कर के आदमी को लेके आओ ना, जिसने पीएचडी किया है, जो कम से कम 50,000 उसके तकरीर के लिए मजमा खड़ा कर सके। क्यों मैं बोलता हूं 50,000? मेरी वजह क्या है? ये जितने जिगर मजाहिब के ठेकेदार है, मजहब के ठेकेदार है, वो पेशा बना चुके, मजहब के नाम पे तकरीर करना और पैसे बनाना। मैंने श्री श्री रविशंकर के साथ डिबेट की थी 2006 में, 18 साल पहले। उस टाइम मेरा टारगेट था कि कम से कम 20,000 लेके आना। और श्री श्री रविशंकर उस वक्त दुनिया के सबसे फेमस हिंदू प्रीचर थे। हजारों लोग उन्हें खुदा मानते थे। वो डिबेट के लिए मान गए, मैं भी मान गया। उनके शहर में, बैंगलोर में मैं जाता हूं डिबेट करने के लिए, और दुनिया ने देखी क्या हो गया। उसके बाद श्री श्री रविशंकर के बाद एक गैर मुस्लिम जो 50,000 को इकट्ठा कर सकता है, मैं कभी चैलेंज ही नहीं किया मुझे, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएगी आज की तारीख में। और हम जानते हैं कि गवर्नर ऑफ सिंध जनाब कामरान खान तिसोरी, उसने इनाम रखा कि अगर श्री श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ डिबेट करने को तैयार है, वो उसे $5 मिलियन देंगे। और मुझे कहा ये भाई झूठ नहीं था। मुझे कहा, मैंने 5 तुजार को बोला 1-1 मिलियन देंगे, मान गए। बोले मैं 1 मिलियन दूंगा, तो झूठ नहीं बोला था। मुझे तकरीर के बाद बोला मैंने 5 लोग से 1-1 मिलियन डॉलर। और उसने पब्लिक में कहा अगर श्री श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक से फिर से डिबेट करने को तैयार है, तो गवर्नर ऑफ सिंध इन पाकिस्तान जनाब कामरान खान तिसोरी $5 मिलियन देंगे श्री श्री रविशंकर को। उस टाइम तो कर लिया डिबेट, उसे पता नहीं था। अभी आप उसको आएंगे ही नहीं हो, उसकी दुकान बंद हो जाएगी ना। वो तो उसका बजट तो $5 मिलियन से ज्यादा है सालाना। और क्रिश्चियन मिशनरी है जिनका बजट $100 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन है, बहुत है। बेनिहिन, मॉरिस सिरेलो, कहिए आओ डिबेट करो, नो प्रॉब्लम। ये बच्चे लोग आते, ये बच्चे लोग को बेचते। अरे हमें डिबेट को ऊपर गए बच्चे को मारता है, बराबर ना? टक्कर के आदमी को लो, हमेशा जब कंपटीशन होता है हैवी वेट, लाइट वेट हैवी वेट का झगड़ा नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता है। गलत है भाई। हम क्या है, हम पैगाम पहुंचाते हैं, हर एक को मौका देते हैं। आपके क्रिश्चियन मिशनरी की तकरीर में या हिंदू जो बड़े बड़े प्रीस्ट है, वो थोड़ी देते हुए पूछो मुझे, कोई भी गैर हिंदू पूछो, पूछने देते ही नहीं, खुद तकरीर करते हो चले जाते। हम तो भाई ओपन है, खुली नशिस्त, क्योंकि हम जानते हैं हमारा दीन हक का है, हमारी किताब कुरान हक की है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81, वकुल जाल हक मज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। आप हक अगर बातिल से टकराता है तो बातिल खत्म हो जाता है। इंशाअल्लाह हम दूसरे लोगों को मौका देंगे सवाल पूछने का। अब हम मूव करते हैं माइक नंबर 3 पे। प्लीज अपना नाम बताएं, अपना पेशा बताएं और अपना सवाल पूछें। माइक नंबर 3, जी पूछें। जी, मसीह यसू के अजीम नाम में जो है डॉक्टर साहब पर और यहाँ पे तमाम मजमे पर जो है वो सलामती हो। मेरा नाम पादरी अलीशा फैज आलम है और मैं डॉक्टर साहब से सवाल ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो है कराची के अंदर एक छोटा बच्चा था, क्रिश्चियन बच्चा, जिसे डॉक्टर साहब ने जो है कहा कि कोई मर्द का बच्चा जो है क्रिश्चियंस में से, उनके स्कॉलर्स में से आए और मेरे साथ जो है वो डिबेट करे। और एक जो है उन्होंने शर्त भी आयद की कि पहले ये होना चाहिए कि उसने 20,000 के मजमे को जो है उसमें तकरीर की हो। तो मैं डॉक्टर साहब से अर्ज करना चाहूंगा कि 20,000 के मजमे में पाकिस्तान में कोई इस्लामी स्कॉलर भी नहीं है जिसने काबिल अध्ययन के हवाले से या कोई ऐसा मामला, कोई डिबेट वगैरह की हो इतने बड़े मजमे में या तकरीर की हो। तो डॉक्टर साहब जो है ये जुमला जो है वहां पे बोल के आए, तो मैं जाती तौर पे इसे जो है क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हक में एक गैर इखलाकी जुमला तस्वर करता हूं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे
بہت سارے کرسچنز جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اب جملے کس رہے ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر مرد کے بچے ہیں تو وہ اب آ کے جو ہے ہم سے ڈیبیٹ کریں, کیونکہ انہوں نے یہ جملہ بولا ہے تو اب وہ کیوں مطلب بھاگ رہے ہیں یا کیوں وہ جو ہے اوائڈ کر رہے ہیں. تو میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کہ اگر آپ نے ڈیبیٹ نہیں کرنی تھی تو آپ نے پھر چیلنج کیوں دیا, وہ بھی پاکستانی اسکالرز کو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بھائی صاحب بہت اچھا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب صرف سوال آپ کا ختم ہو گیا. اچھا چلے پہلے سوال نہیں ہے, سوال نہیں ہے. ارے کیوں چیلنج کیا, سوال ہے کیا, عجیب انسان ہے. آپ نے کیوں چیلنج کیا, سوال ہوا کہ نہیں؟ آپ کو اردو نہیں پتا, کیوں چیلنج کیا, سوال ہے کیا نہیں؟ بولتے سوال نہیں. جی سر میں نے سوال ہی کیا, سوال کیا سر. آپ اپنا سوال پوچھ چکے ہیں, سوال پوچھتے پھر بولتے سوال کیا نہیں. تو یہ سوال جواب کی نشست ہے. بھائی صاحب نے کیا کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی اسلامک اسکالر نے 20,000 کا مجمع اکیلے ایڈریس نہیں کیا. صحیح بول رہے ہیں گلت بول رہے ہیں؟ سر تقابل دھیان کے حوالے سے میں سر آپ پلیز, آپ کا سوال ابھی ختم ہو گیا, آپ بیچ میں کیوں اٹکاتے؟ یہ کا ڈیبیٹ ہے کیا؟ ہم پیار سے آپ کو سوال پوچھنے کا موقع دیا, میں نے بیچ میں بحث کیا. ابھی آپ چپ چاپ سنیے, اگر میں سوال پوچھوں گا تو پوچھنے تو چپ چاپ کی, آپ کا وقت ختم. سمجھیے میں نے تقابل بیان کے حساب سے کہا. اچھا میں یہاں مجمع کتنا بڑا ہے؟ 20,000 سے زیادہ ہے کیا نہیں؟ ہے کیا نہیں؟ اپنے عیسائی بھائی کو دکھتا ہی نہیں. یہاں 20,000 سے زیادہ مجمع ہے, کراچی میں 20,000 سے زیادہ مجمع ہے. سر یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, یہاں پہ کوئی پاکستانی اسکالر نہیں ہے. ہاں تو میں وہی تو کہتا ہوں نا, میں نے کب کہا کہ میں پاکستانی اسکالر سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے کدھر بھی کہا؟ میں نے یہ کہا کہ آپ میں سے کدھر بھی کرسچین اسکالر, چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان کے باہر ہو, اور میں جانتا ہوں پورے دنیا میں کم از کم 100 کرسچین پریچرز ہیں, کم از کم, ہندو بھی, جو 50,000 سے زیادہ کا مجمع پہ تقریر کرتے ہیں. سر بینی ان کو ڈیبیٹر ارے بھائی آپ چپ بیٹھیں گے؟ بھائی صاحب اس کے مائک کو بند کرو. آپ کو سمجھتا نہیں ہندی, اردو سمجھتا نہیں, آپ رول کو فالو نہیں کر رہے. میں پیار سے بات جواب دے رہا ہوں, بیچ میں ٹپک رہے. کیا آپ سے ڈیبیٹ کروں؟ میں بیوقوف ہوں کیا؟ لوگ بولتے ڈاکٹر ذاکر نائک مرد کے بچے ڈیبیٹ کرو. ارے مرد کے بچے سے ڈیبیٹ کرتا ہے کیا؟ اس کا جواب دیا کہ نہیں میں نے پہلے سوال میں دیا کہ نہیں؟ ہیوی ویٹ سے کرتا ہے. یہ لوگ سنتے ہی نہیں. یہ لوگ پورے گھانچے کی بھیل ہے, پتہ نا گھانچے کی بھیل گھومتے رہتے. وہ اپنے دماغ میں سوال رکھ کے آتے, سنتے نہیں اور دوہراتے. یہی پرابلم ہے. کیا میں اسے بحث کروں؟ میں پاگل ہوں کیا؟ میں کیوں بولتا ہوں, میرا کیوں میں نے چیلنج کیا؟ کیونکہ یہ لوگ, آپ بولتے یوٹیوب پہ بہت لوگ نے ذاکر نائک کا جواب دیے. آپ کیا کرو, آپ کے پادری جو ہے نا, مورس سریلو, بینی ہن, فرینکلن گراہم, یہ بڑے بڑے نام ہیں, ان کے پاس آپ کی جو ہے نا وہ سائن آف جو نا لے کے جاؤ, بولو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بیس کرو, $5 ملین ملیں گا ابھی آپ کو. لے کے جاؤ, وہ آپ کو لات مار کے بھگائیں گا, کیونکہ جانتا ہے وہ بچ جائیں گا, تم تو فیمس ہو جائیں گے. ارے ڈاکٹر نائک سے ڈیبیٹ کیا, سب لوگ ورلڈ فیمس. تو کس کو بھی فیمس ہونے کا ہے تو کس کے خلاف؟ ایک مشہور انسان کے خلاف بات کرو. یہ تو انسان کی فطرت ہے. پہلے میں کرتا تھا جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا, اور لوگ دیکھتے بہت سے ڈیبیٹ اویلیبل ہے, اور کیا ان کا اثر ہوا؟ ابھی میں کہتا ہوں کہ معیار کے آدمی کو لے کے آؤ نا, لوگ نے تو بولیں گے بھائی بچے کو مارتا ہے. تو میرا چیلنج کلیئر تھا کہ آپ جو بول رہے بالکل غلط بول رہے. آپ اپنی عیسائیت کی کتاب کو نہیں جانتے, عیسائیت کی فلسفی کو نہیں جانتے, اور آپ بچے ہیں. تو کسی آدمی مرد کو بھیجو نا, ٹکر کے آدمی, مطلب معیار کے آدمی کو بھیجو, جو بھائی لوگ اس کو مانتے ہیں. PhD کی کوئی ویلیو نہیں میرے سامنے. جو لوگ مانتے کم از کم 50,000 کا مجمع, 30,000, چلو 20,000. پاکستان میں نہیں ہے تو پاکستان کے باہر سے لے کے آؤ. کیا عیسائیت پاکستان میں محدود ہے؟ کیا عیسائی اسکالر پاکستان میں کیا باہر ہے؟ اگر امریکن اسکالر آئے گا وہ اچھا رہے گا, پاکستانی اسکالر کون اچھا رہے گا؟ امریکن یا پاکستانی؟ امریکن. یہ بھائی سمجھتا ہے پاکستانی اچھا رہے گا. ہاں اسلام کے بارے میں پاکستانی ہو سکتا ہے, برابر نا؟ اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں پاکستانی ہو سکتا ہے. عیسائیت کے بارے میں پاکستانی سے کیوں کروں بھائی؟ لوگ بولیں گے دیکھو پاکستان پہ جا کے بچے لوگ کو پیٹ رہا ہے. ارے میری عزت ہے بھائی, میں امریکہ گیا ہوں, UK گیا ہوں, بڑے بڑے لوگ سے کیا. تو یہ
ये बेवकूफी कि आप लोग को शोहरत चाहिए, आके डोंट डिबेट, यू डोंट अंडरस्टैंड साइलेंट पॉइंट, वेस्ट ऑफ टाइम और फिर बहस करना। एक उसूल को फॉलो करना होता है। क्या बोला इसने कोऑर्डिनेटर ने? मुख्तसर सा सवाल, 3 से 4 जुमले, आपने 10 जुमले पूछे, उसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप गैर मुस्लिम हैं। हम आपको मोहब्बत करते हैं, लेकिन नाजायज फायदा मत उठाओ। ये नाजायज फायदा, बहस कर, टाइम क्या अभी? आपके पादरी कभी 2 बजे तक ये बात करते क्या? लोग को मौका देते सवाल करने का? देते क्या लोग? सवाल करने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं सवाल करने का मौका देंगे तो प्रोग्राम बंद करने पड़ेगा। सवाल जवाब का उसूल होता है। तो मैंने जो इसको भी कहा, आप बाइबल से कहा साबित तो करो। साबित ही नहीं, कल का आदमी हो चर्च के अंदर 30,000 लोग, अरे चर्च के अंदर खुदा की इबादत करने आ रहे हैं, पादरी को सुनने आ रहे हैं। तो हमें कब चैलेंज करते हैं तो टक्कर के, उसका मतलब नहीं तुमको करने का है तो आओ ना मलेशिया में, आओ मलेशिया, टिकट खरीद के हॉल हायर करो, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भेजूंगा, बराबर कि नहीं? हॉल हायर करो, मेरे बहुत से बच्चे स्टूडेंट दूंगा, मेरा बेटा नहीं करेगा, इसका भी मयार है। जब माइक नंबर 4 पे अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो बताएं मुझे। खवातीनों में से कोई है? नॉन मुस्लिम नहीं है। अच्छा, माइक नंबर 1 पे कोई नॉन मुस्लिम है? बता दिया नहीं है। माइक नंबर 1 मर्दों में, माइक नंबर 1 में कोई नॉन मुस्लिम है? जी है जी भाई। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये वॉलंटियर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सवाल पूछने के बाद जो तहजीब का जो मामला है, आप प्लीज मेक श्योर करें कि सवाल पूछने के बाद जो ना हमारे स्पीकर अगर जवाब दे रहे हैं उनको इंटरजेक्ट नहीं करें, ठीक है? आप सवाल पूछें और तहजीब का माहौल बरकरार रखें। अपना नाम बताएं, अपना पेशा बताएं और मुख्तसर करके अपना सवाल पूछें सर। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान गिल है और मैं पेशे के लिहाज से एक टीचर हूँ और लाहौर से ही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने बाइबल मुकद्दस का कई दफ़ा मुतालिया किया है और क्योंकि मैं थियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मैंने कुरान मजीद का भी मुतालिया किया है, और इसमें जब मैंने कुरान मजीद का मुतालिया किया तो पता चला। आपका नाम क्या आपने कहा? इमरान गिल। आप मुसलमान हैं कि गैर मुस्लिम हैं? आई एम क्रिश्चियन। ओके, क्या और मेरा जी सवाल वापस से दोहराएंगे? जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आई एम अ टीचर, थियोलॉजिकल टीचर, और बाइबल मुकद्दस के साथ साथ मैंने कुरान मजीद का भी मुतालिया किया, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सी ऐसी आयात हैं जिसमें बताया गया है कि अंजील, तौरात और ज़बूर में हिदायत है, नूर है, रास्ता है, सीधी राह है, सूरह माइदा है, सूरह अंबिया है, सूरह मोमिन है। तो फिर अगर ऐसा है तो क्यों ऐसी तालीम दी जाती है कि एक तरफ मुसलमान कहते हैं कि जब तक इन चारों किताबों पे ईमान ना ले आए हम मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इसको पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपकी इस्लामिक किताबें हैं, आप इन पर ईमान लाए बगैर मुसलमान नहीं हैं, तो फिर पढ़ते क्यों नहीं हैं? और हमारे मौलाना हजरात क्यों डिस्करेज करते हैं मुसलमानों को कि इन किताबों को आप ना पढ़ें? माशाअल्लाह भाई इमरान का बहुत अच्छा सवाल, एकदम साफ सुथरा। वो कहते हैं कि कुरान मजीद में कई जगह जिक्र है, तोरा, ज़बूर, इंजाल, हिदायत की किताबें बिल्कुल सही फरमाते, 100%। मायदा, बकरा, बहुत जगह पे बिल्कुल सही। उनका ये कहना है कि अगर आप मानते हैं ये किताबें हैं तो मुसलमान के मौलाना मुसलमान को पढ़ने क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये किताबें मौजूद ही नहीं है। तोरा, ज़बूर, इंजूर मौजूद ही नहीं। अभी जो मौजूद है उसकी बिगड़ी हुई शक्ल। आज की तारीख में आप टीचर है, मैं तालिब इल्म हूं, आप टीचर है ना? आई एम स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। जो कुरान में लिखा गया है कि इंजील अल्लाह की वही है, हम इंजील को मानते हैं, अल्लाह का कलाम, बाइबल को नहीं। बाइबल क्या है? बाइबल ये लफ्ज कहां से आया है? फ्रॉम द वर्ड बिबलोस। बिबलोस मतलब किताबों का किताब, सही जाने? आप टीचर है। ये हम मानते हैं। अभी आप पढ़ेंगे गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक। हमें चाहिए गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जीसस ईसा अलैहि सलाम। वो किधर है? हम वो चाहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम पे वही नाजिल की। इसीलिए कभी कभी मुसलमान गलत करते। मैं कहता हूं बाइबल, तो अरबी में तर्जुमा करते इंजील। मैं बोला भाई साहब, मैंने बाइबल का इंजील नहीं कहा। ये बाइबल जो है वो इंजील नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि जितने किताब पहले आए उनको महफूज रखने का वादा ही नहीं किया, लेकिन सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाते हमने नाजिल किया जिक्र और हम इसकी हिफाजत करेंगे।
क्योंकि ये आखिरी कलाम में जितने कलाम मैंने पहले कह चुका हूं मेरे आंसर में, जितने कलाम कुरान मजीद के पहले आए किताब में लिखा है 4, तोरा, ज़बूर, इंजील, कुरान। लेकिन सूरह रास सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में लिखा है कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की, बोले कुल्ली अजली किताब, बराबर। लेकिन जितने भी किताब कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थे, ताक़यामत तक ने, और सिर्फ एक लोगों के लिए थे। मिसाल के तौर पे जो इंजील जो नाजिल की गई थी, कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर भेजे गए थे बनी इस्राइल के लिए, बाइबल में भी उसका जिक्र है। तो वो महदूद था, तो जब महदूद है अल्लाह ने उसे सही नहीं समझा कि उसे महफूज रखे। आप टीचर है, अच्छा एडिशन आ गई, किताब के एडिशन, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन। भाई साहब टीचर है कॉलेज में, बराबर। आप बोलेंगे बच्चे लोग फर्स्ट एडिशन पढ़ो, आप क्या बोलेंगे लेटेस्ट एडिशन पढ़ो, कलेक्टर ने। आप बोलेंगे अपने बच्चे लोग को अरे फर्स्ट एडिशन पढ़ो। हाँ, कुछ लोग को बोलेंगे तहकीक के लिए। आप बोलेंगे सब बच्चे पहली एडिशन पढ़ो, कोई बोलेगा? पाकिस्तान में कोई टीचर बोलेगा? हाँ क्या नहीं? आप क्या बोलेंगे लेटेस्ट एडिशन पढ़ो। अगर साइंस पढ़ा रहे लेटेस्ट पढ़ो। कुछ लोग रिसर्च करते हैं, कुछ लोग रिसर्च करते हैं। आप रिसर्च करो किस तरीके से फर्स्ट एडिशन है तो आप पढ़ेंगे। मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैंने पढ़ा बाइबल। मैं बोलता हूं पूरी बाइबल पढ़ना वक्त जाया मत करो, पागल बने क्या? मैं पढ़ा हूं, आप लोग क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूं, समझे आप? क्योंकि इंजील हिदायत की किताब है, लेकिन उस वक्त के लिए, और आज महफूज नहीं है। आज कितने किस्म के बाइबल है बोलो? कितने किस्म के बाइबल है? आप जानते हैं हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ द बाइबल? देयर आर क्वाइट अ फ्यू वर्जन्स। क्वाइट अ फ्यू। आपका फ्यू का लिमिट क्या है? हाईएस्ट नंबर क्या है फ्यू का? क्योंकि यहां 1 सेकंड होता है 1 घंटा। फ्यू मतलब कितना? जितना भी हो आई डोंट नो। नहीं, आपके हिसाब से भाई, मैं पंजाब में, मुझे पता नहीं। वो आपका भाई 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है जी। आपका फ्यू कितना होता है? 1000, 10,000? लेस देन 100। लेस देन 100 गलत। मेरे लाइब्रेरी में 200 बाइबल है, 240। There are thousands of versions of the Bible. According to Christian scholars, there are 24,000 different manuscripts of the Bible and no two identical. 24,000 manuscripts है, 24,000, और कोई भी दो सेम नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में बंबई में 200, तकरीबन 240, 250 बाइबल थे। Less than 100 few. कुरान, अरबी कुरान कितने? 1। तर्जुमा होंगे अलग। ये जो बाइबल का तर्जुमा नहीं, वर्जन, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। तो कौन सा पढ़ने बोलूंगा मैं उनको? तो सर जो ओरिजिनल है वो पढ़ें आप जाके। जो ओरिजिनल है ही नहीं, ओरिजिनल कहते हैं ना। मैंने कहता हूं क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं भाई, आप क्रिश्चियन स्कॉलर्स को पढ़े ही नहीं, और मैं तो एक करूंगा ना, ओरिजिनल है ही नहीं। 24,000 ये बोल सकते ये ओरिजिनल से सबसे करीब है। अच्छा, कुछ लोग को पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ता हूं ना। मैं पूछता हूं कि आप स्कूल के अंदर बोलेंगे, कॉलेज में बोलेंगे, ओ भाई साहब आज 20th एडिशन चल रहा है किताब का, आप साइंस पढ़ रहे, 1 to 20 सब पढ़ो, बोलेंगे क्या आप? हाँ, कुछ लोग को बोलेंगे। अगर आपको तहकीक करने का है किस तरीके से एडिशन है, वो मैं हूं ना पढ़ने के लिए, मैं क्यों बाकी लोग को बोलूंगा? 2 बिलियन लोग को। आपको जवाब मिल गया? क्योंकि ये सब किताब चेंज की गई है। लेकिन सर कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि ये तब्दील होगी। एक आयत कुरान में नहीं है जो कहे कि ये तब्दील हो गई है, बल्कि वहां पे तो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स में है कि इसमें राह है, हिदायत है, नूर है। एक आयत क्या बोलता है? एक आयत नहीं, यहाँ तब्दील हुई, एक आयत। अहादीस में होगा, लेकिन अभी मैं बोलता हूं सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। वो लोग को कहो जो अपने हाथ से बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं, और कहते हैं अल्लाह से है। कुरान क्या है? तब्दीली की बात तो नहीं ना की कि तब्दील हो गई। अरे कुरान से हाथ से लिखते, वही तो बोला है ना मैं, ओरिजिनल मौजूद ही नहीं। ये सब जितने बाइबल है हाथ से लिखे गए इंसान के, और इसका जिक्र ये बाइबल का ही जा रहा है। ये जिक्र जो है बाइबल का ही है। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून फवैलुल लहुम मिम्मा। अरे वो कहते कि कह दो उनसे जो किताब अपने हाथ से लिखते और कहते हैं ये अल्लाह से है। वो क्यों लिखते हैं? कुछ पैसे कमाने के लिए। कहे कि वो उनके ये गलत है। सर कैन आई से समथिंग? नो यू कैन नॉट से। इतने सब प्लीज डोंट से, क्योंकि इफ यू आर अ गुड प्रोफेसर, मैं आपको 30 बार पूछा, आप बोलेंगे सारों एडिशन पढ़ने का। चुप बैठे, चुप बैठे।
आप अगर टीचर है, आपका साइंस की 20वीं एडिशन चल रही है, आप अपने स्टूडेंट से बोलेंगे, सब स्टूडेंट से पहला एडिशन 1 to 19 भी पढ़ो, जवाब ही नहीं दे रहे, उसका मतलब आप सच्चे इंसान नहीं हैं। माफ करना, माफ करना, आप हक के इंसान नहीं है। आप जब फंस गए मुंह ही नहीं खोलते, दूसरी सवाल करते, एक आयत बताओ, आयत बताई, चुप बैठ गए। अरे भाई जरा तो तस्लीम करो, हाँ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मैटर खत्म। सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता। सर आप अपने मुताबिक बात करें ना, मैंने अच्छा भाई क्या पंजाब में सीखता? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप साइंस पढ़ने जाते और 20th एडिशन पढ़ाई जाती, क्या आपके पंजाब में बोल दो, हेल्थ मिनिस्टर बैठे यहाँ, एजुकेशन भी है, क्या आप सिखाते क्या भाई पहले 19 एडिशन पढ़ो? सिखाते क्या? ये लोग जब फंस जाते ना, एक अक्ल में इंसान क्या बोलेगा, कम से कम तस्लीम करेगा मैं फंस गया, मतलब कुछ तो इंटेलिजेंट है। वो बेवकूफ इंसान तस्लीम नहीं करेगा पूरी दुनिया के सामने, करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको। Sir, I respect you. I want to. Why you respect me? What you're not respecting me? I have asked you a simple question. You as a teacher, I'm not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You're not opening your mouth. लेकिन आम बुक में और बाइबल में फर्क है ना? कोई भी किताब हो भाई, बाइबल और कुरान में फर्क है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि लैंग्वेज, बाइबल और कुरान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं बेवकूफों के मुसलमान को बोलूंगा बाइबल पढ़ो? हाँ, जहां आपको डिबेट करने का है, जहां दावा करने का, मैं आपको सिखाऊंगा कौन से वर्सेस पढ़ने का है। तो हम लोग का वक्त जाया नहीं करना चाहते। आप जब फंस जाते ना बाइबल उसमें फर्क है, क्या फर्क है भाई? एडिशन एडिशन है। तो कुरान में जो लिखा है कि लोग अपने हाथ से किताब लिखते और कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो अल्लाह ताला उन पे फटकारता है। और आप जैसे लोग पढ़ते हैं और बेवकूफ बन जाते, हम जैसे लोग एनालाइज करते, हम भी पढ़ते, बाकी मुसलमान नहीं, मैं पढ़ता हूं, बाकी मुसलमान के बिहाफ पे मैं पढ़ता हूं। मैं फर्ज किफाया कर रहा हूं, फर्ज किफाया। सर आपकी बात माने या कुरान मजीद की बात माने? कुरान मजीद में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है भाई, मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूं। कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, को मुसलमानों लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ। कुरान मजीद कहता है तालव इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। भले आपकी बाइबल बदली गई है, फिर भी मैं आपके बाइबल को पढ़ के यकसानियत निकालता हूं, यकसानियत निकालता हूं। आपके पादरी अगर कुरान को अटैक करते हैं तो मैं डिफेंड करता हूं, नहीं तो मेरे जितने आप देखेंगे मेरे तकरीर है, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। आपके विलियम कैम्बेल अमेरिका से किताब लिखे कि कुरान में 38 साइंटिफिक एरर है, तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मुझे तो ये ईयर 2000 है, मेरी उम्र सिर्फ 35 साल थी उस टाइम, और जाके डिबेट किया मैंने उससे। अल्हम्दुलिल्लाह उसने स्टेज पे तस्लीम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी गलतियां निकाले बाइबल में, मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा। सच्चे इंसान थे, आप जैसे नहीं थे। तो मैंने क्या झूठ बोला आपसे? आप तो ह्यूमिलेट करते हैं अपने उन लोगों को जो क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बड़े अच्छे तरीके से सवाल पूछा, यू स्टार्टेड ह्यूमिलेटिंग मी। मैं ये सिंपली कह रहा हूं कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ना, आप जो कर रहे हैं ना, बहस कर रहे हैं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, माइक बंद नहीं कर रहा हूं। इतनी देर 12:30 बजे कोई क्रिश्चियन मिशनरी 20,000 के मजमे में अलाउ करेगा क्वेश्चन आंसर करने के लिए? वो तो सिर्फ तकरीर करते, ह्यूमिलेट कर रहे। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। कहने आपने बोलो एक आयत दिखाओ, मैंने जवाब दिया। आप ये तो बोलना चाहता माशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक थैंक यू। आप थैंक यू भी नहीं बोल रहे। थैंक यू। रात के 12:30 बजे हजारों लोग का टाइम बर्बाद कर रहे और बोलते ह्यूमिलेट कर रहे। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे। थैंक यू बोलने के बदले ह्यूमिलेट बोल रहे। थैंक यू, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। जवाब तो दे भी दिया आपके, एक सवाल का नहीं, तीनों सवाल का जवाब दिया। क्योंकि बाइबल ये जो बिगड़ी हुई फॉर्म है इंजील का, कुरान में कहा नहीं निकला का बाइबल अल्लाह की किताब है, कुरान में निकला इंजील। आज इंजील ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद ही नहीं है। आज जो बाइबल है इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। उसके लिए कुछ मुसलमान तहकीक करना चाहिए, मैं करता हूं, और पादरियों से डिबेट करना चाहिए बड़े बड़े, ताकि वो दीन की तरफ लेके आए। सब मुसलमान को वक्त जाया करने की जरूरत ही नहीं। और जहां आपने कहा एक भी आयत बताओ जो बिगड़ गई, वो तो कह दिया क्या लोग लिखते हैं किताब। आपके 2-3 सवाल सबका जवाब दिया। आखिर में आपने थैंक यू बोले, गुड, अल्लाह आपको हिदायत दे, आई लव यू, मे अल्लाह गाइड यू सो दैट यू कम ऑन द स्ट्रेट पाथ। थैंक यू वेरी मच, आई विल आल्सो प्रे फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू। अच्छा, माइक नंबर 2 पे कोई नॉन मुस्लिम भाई है जिसको सवाल पूछना है? माइक नंबर 2। सर हैं जी, सर हैं। अच्छा, आप अपना, अच्छा ये इमाम साहब की तरफ से एक रिक्वेस्ट है।
بھائی یہ جو حضرات سامنے بیٹھے ہیں پلیز آپ تالی نہ بجائیں, آپ تکبیر کریں لیکن آپ تالی نہ بجائیں. جی یہ مسجد ہے, اس کا ڈیکورم رکھیں. امام صاحب کا یہ ایک ریکویسٹ ہے, میں نے پیغام آپ تک پہنچا دیا, جزاک اللہ. آپ تکبیر کریں لیکن آپ تالی نہ بجائیں. اچھا مائک نمبر 2 پلیز, آپ اپنا نام بتائیں اور اپنا پیشہ بتائیں اور اپنا سوال پوچھیں مختصر. مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. میرا نام گلفام سنیل ہے اور میں تقابل دیان کا ایک طالب علم ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے. ڈاکٹر صاحب کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی. اپنا نام کیا بتایا آپ نے؟ گلفام سنیل. آپ کا ریلیجن کیا ہے؟ مسیحی ہوں میں. کرسچن. یس. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے بقول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی تو ان کی جگہ کسی اور شخص کو مصلوب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نمبر 1. تھینک یو. میں ایک ہی سوال آپ کو الاؤ کروں گا اور میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے مہمان ہیں, اگر وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں تو آپ پلیز انٹرجیکٹ نہیں کیجیے گا. اگر ان کو آپ سے کوئی پوچھنا ہوگا تو تب آپ جواب دیجیے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ انٹرجیکٹ نہیں کیجیے گا. ایٹ اے ٹائم آئی ول الاؤ اونلی ون کوسچن. تھینک یو. بھائی صاحب کا سوال ہے, بھائی صاحب کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب موت نہیں ہوئی ان کے جگہ پہ کسی اور کو سولی پہ کیوں لٹکایا گیا تھا؟ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ پہ کسی اور کو لٹکایا گیا تھا. یہ آپ کا وہم ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157, وہ کہتے ہیں یہود لوگ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا ہے. وما قتلوا وما صلبوا, نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا. ولکن شبیہ لہم, جو بھی اس سے ڈفر کرتے وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. جو بھی اس سے اختلاف کرتے ولکن شبیہ لہم, وہ غلط ہے. وما قتلوا یقینا, ان کو شورلی قتل نہیں. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ایکس ہوا, وائی ہوا, زی ہوا. قرآن کی آیت کلیئر ہے, کیا نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا. لیکن کچھ مفسرین ہاں گاسپل آف بارناباس پڑھتے ہیں. گاسپل آف بارناباس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ پہ جوڈاس کو سولی پہ چڑھا گیا تھا. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, اللہ عالم, ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے. قرآن میں نہیں لکھا ہے. تو جو لوگ اس کو اینالائز کرتے ہیں, جب اللہ نے کہا ہے کہ غلط ہے تو غلط ہے, میں کیوں میرا ٹائم ویسٹ کروں, کیا ہوا؟ اللہ نے صاف کہا گیا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا. ولکن شبیہ لہم, وہ الگ بات ہے کہ لوگ نے اپنی تحقیق میں یہ ہوا ہے گا وہ ہوا ہے گا. اللہ نے کہا نہیں کیا گیا, نہیں کیا. ان کے جگہ کس کو لگا یہ باقی آپ کو کرسچن کتابوں میں ملیں گے. اور کچھ مسلمان کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے, بٹ کوئی مسلمان کہتا ہے ہو سکتا ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. تب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ولکن شبیہ لہم, تو ڈفر کرتا ہے تو کیوں مجھے تحقیق کر کے ملے گا کیا مجھے؟ تو قرآن میں نہیں لکھا ہے, یہ گاسپل آف بارناباس میں لکھا ہے, عیسائی کی کتابوں میں. اور کیونکہ گاسپل آف بارناباس میں کئی چیز قرآن سے ملتی ہے, اس کے اوپر لوگ نے کتاب لکھے. میں گاسپل آف بارناباس پڑھا ہوں, لیکن میں بولتا ہوں ٹائم مت ویسٹ کرو. کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 110, وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ, وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ آپ مسلمان جنت میں جائیں گے بھی نہیں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ, یہود و نصارہ بولتے تم مسلمان نماز پڑھو, حج کے لیے جاؤ, روزہ رکھو, زکات دو, کبھی بھی جنت میں نہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ, یہ بکواس ہے بکواس. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, آپ کا ثبوت پیش کرو, برہان پیش کرو, ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہود و نصارہ کہیں گے کہ آپ لوگ جنت میں جائیں گے ہی نہیں جب تک آپ یہود اور نصارہ نہ بنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ, یہ بکواس ہے بکواس. کل کہو ہاتھ برہانکم, اپنا ثبوت پیش کرو, برہان پیش کرو, ان کنتم صادقین, اور اگر آپ سچے ہیں. تو کرسچن کہتے ہیں ہمارا برہان کیا ہے, مائی بائبل سیز دس, مائی بائبل سیز دیٹ, مائی بائبل سیز دس, مائی بائبل سیز دیٹ. تو میں کیا کروں, بائبل کو نکل لوں, اگر کوئی شناختی کارڈ دکھاتا ہے ہم چیک کرتے ہیں بھائی کیا لکھا ہے,
कोई गॉस्पेल ऑफ बार्नबेस बहुत कम लोग दिखाते. अक्सर क्रिश्चियन कहते बाइबल, तो मैं गॉस्पेल ऑफ बार्नबेस की स्टडी करूंगा तो पहला बहस करने पड़ेगा आपका कुरान क्या है. ईसाई कहते हैं हमारा कुरान बाइबल है, नॉट गॉस्पेल ऑफ बार्नबेस. तो तहकीक करना अच्छी बात है, कर सकते हैं, पर फायदा बहुत कम है. जब मैं उनके बाइबल से साबित कर सकता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम को सीढ़ी पे चढ़ाया नहीं गया था, तो मैं गॉस्पेल ऑफ बार्नबेस पे क्यों जाऊं? बराबर ना? अरे भाई, अरे सवाल कंप्लीट हो गया. सवाल दो, मेरा जवाब भी कंप्लीट हो गया. आपको सवाल मुख्तसर का करना चाहिए. मेरा जवाब कंप्लीट हुआ, फिर आप बोलते मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हो. आप लाइन के पीछे जाओ, वक्त मिलेगा तो आप पूछ सकेंगे सवाल. अच्छा, खवातीनों से काफी देर तक कोई भी सवाल नहीं हुआ है. फन को बेस करके वो तहकीक करके फिर जवाब देते, तो ये मुहद्दिसीन ही जवाब दे सकेंगे क्या ये कितनी आयतें हैं. होप द आंसर द क्वेश्चन. सर नहीं, एक क्वेश्चन एट अ टाइम, आप प्लीज सबर करें. जाकिर भाई, वो श्रीलंकन ब्रदर जिसको आपने बुलाया था. अच्छा, अब हम मूव करते हैं खवातीनों की तरफ. खवातीनों के साइड पे अगर कोई सवाल है तो वो खातून प्लीज माइक पे आ जाएं और अपना नाम बताएं, अपना पेशा बताएं और अपना सवाल पूछें. और मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा ऊंची आवाज में पूछेगा ताकि आपकी आवाज एकदम क्लियरली स्टेज तक आए. जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम मेरा सलाम. नाम फातिमा वहीद है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ. क्या नाम बताया आपने? फातिमा वहीद. फातिमा वहीद जी, पूछिए. जी, मेरा सवाल ये है कि अगर शैतान हमें उकसाता है, वर्गलाता है गुनाह करने के लिए, तो शैतान को कौन वर्गलाता है? बेशक हर चीज अल्लाह की मर्जी और उसकी विल पावर से होती है, तो शैतान को कौन वर्गला रहा है? बिन का सवाल है कि हम कुछ गलत काम करते हैं तो शैतान हमें भड़काता है, लेकिन शैतान को कौन भड़काता है? आप कुरान मजीद में पढ़ेंगे तो कई जगह जिक्र है इब्लीस के बारे में, और तकरीबन 7 जगह कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने इब्लीस से फरमाया कि आप सिजदा करो. अल्लाह ने फरमाया एंजल से, अल्लाह ने मलाइका से फरमाया कि आप सिजदा करो. सब ने सिजदा किया इल्ला इब्लीस. और फिर हम जानते कुरान मजीद में उसका जिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज होते और उसे कहते कि सजा देंगे. तो इब्लीस अल्लाह से इल्तिजा करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे रिस्पाइट दो, मेरे सजा को जरा देर से करो, और अगर आप मुझे रिस्पाइट देंगे, रिस्पाइट मतलब सजा को देर करेंगे, तो मैं तुम्हारे बंदों को भड़काऊंगा. तो अल्लाह ताला जवाब देते सूरह बकरा में कि आप मेरे बंदों को भड़का ही नहीं सकेंगे. जो मेरे बंदे नहीं उनको भड़का सकेंगे, लेकिन मेरे बंदों को भड़का नहीं सकेंगे. तो इब्लीस अल्लाह को चैलेंज करता है, और हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा हमेशा गालिब होंगे. तो इस दुनिया में ये टेस्ट है हमारे लिए इम्तिहान है कि हम अल्लाह की बात मानते कि नहीं. तो कुरान मजीद हिदायत की किताब है. हमारा सवाल है कि इब्लीस को कौन भड़काता है? इब्लीस ने अपने आप को भड़काया, उसका गुरूर था. इब्लीस हालांकि अल्लाह की बहुत इबादत करता था, लेकिन उसको गुरूर था कि इंसान को मिट्टी से बनाया, मैं नूर से हूं, आंख से, और मैं और अजीम हूं. तो कई बार हमारा जो गुरूर रहता है, ईगो, वो हमें जहन्नम में लेके जाता है. तो ये इब्लीस का ईगो है जो उसे भड़काया और वो उसे जहन्नम में लेके जाएगा. होप द आंसर द क्वेश्चन. अच्छा, माइक नंबर 1, जो भी साहब सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज आप अपना नाम बताएं. क्या नाम है आपका सर? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम उमैर है. जी, उमैर है मेरा नाम. आप मुस्लिम हैं? जी. जी, आपका सवाल? मैं तालिब इल्म हूं और मेरा सवाल ये है, हाजिर हैं आप? कि जब हम जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला के दीदार होगा, तो क्या अल्लाह ताला अपनी फिजिकल स्टेट में होंगे? जबकि अल्लाह ताला तो नूर है, क्या नूर फिजिकल स्टेट में तब्दील हो सकता है? भाई साहब ने कहा कि हम जन्नत में जाएंगे अल्लाह का दीदार होगा, और अगर दीदार होगा तो फिजिकल स्टेट में रहेंगे. पहली बात, हर इंसान जो जन्नत में जाएगा अल्लाह का दीदार नहीं करेगा. जो ऊंची मयार पे रहेगा सिर्फ वो दीदार करेगा, और हमारी तलब रहेंगी जन्नत में अल्लाह का वजह देखे. आपने कहा कि अल्लाह फिजिकल स्टेट में रहेगा. कुरान की आयत है सूरह शूरा, सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11, लैसा कमिस्लिही शै. उसको आप किसी भी कंपेयर नहीं कर सकते. कंपेयर करो तो खुदा ही नहीं. वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. आप समझ रहे? फिजिकल तो इंसान है, जो इस
दुनिया में अल्लाह ताला के जैसा कोई अल्लाह ताला को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते. आप समझ रहे? अल्लाह ताला इज डिफरेंट. अगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला का जिक्र आता है कि अल्लाह ताला देख सकते, हम देखते आंख से, अल्लाह ताला कैसे देखते अल्लाह वाला? आप समझ रहे? तो अल्लाह ताला का डिफरेंट है, हम उसको जानते ही नहीं. वो अजीम है, हम सिर्फ अल्लाह की अजमत बयान करते हैं. आप समझ रहे? तो हाउ विल ही बी अल्लाह वाला? आप समझ रहे? तो इसीलिए हम अल्लाह का चेहरा देखने की ख्वाहिश करेंगे, और जो जन्नत के आले दर्जे पे होंगे वो अल्लाह ताला उनको चेहरा दिखाएंगे. होप द आंसर द क्वेश्चन. अच्छा, माइक नंबर 2 मर्दों की तरफ से. हेलो. अच्छा, ये लास्ट राउंड है, इंशाल्लाह सारे माइक से एक एक क्वेश्चन आप लेंगे, ये आखिरी राउंड है. माइक नंबर 2 मर्दों की तरफ से, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज सामने आए और अपना नाम बताएं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. मेरा नाम नदीम नजीर है. नदीम नजीर है जी. आपका पेशा क्या है? और मैं पेशे से एक अकाउंटेंट हूँ जी. आपका सवाल? तालिब इल्म हूँ. आपने जाकिर नाके साहब ने बहुत अच्छे तरीके से पहले बयान किया कि वो अपने कॉलेज में, स्कूल में बाइबल भी सिखाते हैं बच्चों को. मेरे पास 2 आयात हैं, मैं सिर्फ उनसे कहूंगा कि वो इसकी तफसीर बयान कर दें, ताकि जो हम क्रिश्चियन हैं, हमारे कीदे के मुताबिक यीशु मसीह जो है वो खुदा के बेटे हैं. आप क्रिश्चियन हैं? यस, मैं क्रिश्चियन हूँ. अच्छा, आपने वजाहत नहीं की थी पहले. अच्छा, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ जी, आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस पढ़ें. जी. गॉस्पेल ऑफ जॉन 14 उसकी 6 आयत. यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता. अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है. फिलिप्पस ने उससे कहा, ए खुदावन, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है. यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा. तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है. मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे बड़े बड़े काम भी करेगा. क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए. ये आपका सवाल? इसमें सवाल में यह है कि यहाँ पर हमें राह, हक और जिंदगी के बारे में कहा गया है कि वही सीधा रास्ता है और वही हक है और वही जिंदगी है. जिसमें अगर हम कुरान पाक में इन अल्फाज का तर्जमा करते हैं तो राह के लिए सिरात मुस्तकीम आता है, और हक के लिए अल हक, जो खुदा ताला की एक सिफाती नाम है, और इसी तरह जिंदगी के लिए अल हई लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये भी अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है. तो हमारे क्रिश्चियंस के मुताबिक जीसस जो है वो सन ऑफ गॉड है, ना कि वो जने हुए हैं, बल्कि वो खुदा का कलमा है, जिस तरीके से कुरान पाक में लिखा है कि वो कलमतुल्लाह है और रूह अल्लाह है. तो मैं डॉक्टर साहब से इल्तमास करूंगा कि काइंडली इस आयत के बारे में थोड़ी सी तफसीर बताए कि जहां पे लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं राह, हक और जिंदगी हूं, और यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा. शुक्रिया. भाई साहब ने सवाल किया है और बाइबल को उर्दू में कोट किया है. मैंने बाइबल अंग्रेजी में पढ़ी तो मैं समझ गया क्या बोल रहे हो. उन्होंने कोट किया गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6. आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू माय फादर बट थ्रू मी. ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6. लेकिन आपको शुरू करना चाहिए वर्स नंबर 1 से, कॉन्टेक्स्ट. इसके अंदर मेरा चैलेंज क्या था? मेरा चैलेंज ये था कि आप बाइबल में से एक वर्स दिखाइए जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. ये चैलेंज मीट नहीं होता है, फिर भी मैं जवाब दूंगा. ये चाहिए इसमें अनइक्विवोकली, मतलब विदाउट डाउट. ये चैलेंज तो मीट नहीं होता, फिर भी मैं जवाब दूंगा. आपने कहा ये जो आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू माय फादर बट थ्रू मी. मैं, ये इंग्लिश है. यस सर. ये उर्दू में तर्जुमा जरा इतना फ्लुएंट नहीं हूं, अंग्रेजी में फटाफट कोट कर सकता हूं. आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं रहा हूं, मैं हक हूं और मैं रास्ता हूं. यस. कोई भी शख्स मेरे तरफ नहीं आ सकता है. नो मैन कैन कम अनटू मी. आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कम अनटू मी बट थ्रू. तो ये पूछ रहे हैं कि इसके मानी, छुपी हुई मानी है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा. जब ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं राह हूं, मैं हक हूं, तो मैं खुदा हूं. बराबर कि नहीं?
हाँ कि नहीं? जी यहाँ पे वो बिल्कुल सर, बिल्कुल वजाहत कर रहे सर। हैं। जब भी कहा गया है कि आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिट टू बी बट थ्रू मी, हर पैगंबर अपने दौर में वो ही रहा था, वो ही हक था अल्लाह की तरफ जाने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम वाज द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू अल्लाह बट थ्रू मूसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे ईसा अलैहिस्सलाम बेशक राह थे, हक थे, अल्लाह की तरफ कोई भी नहीं जा सकता सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के दिखाए हुए रास्ते से। आज के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह है, हक है, अल्लाह की तरफ कोई भी आपको नहीं ले जा सकता है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पे। उसका मतलब ये पैगंबर थे, हर पैगंबर अपने दौर में ही वाज द लाइफ द ट्रूथ, नो मैन केम अनटू ऑलमाइटी गॉड बट थ्रू हिम। तो इसके माने ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं। आप उसको गलत लेते हैं और गलत मान ही लेते हैं, इससे कहीं साबित नहीं होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। आपने कहा ईसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह के कलाम थे, हर पैगंबर अल्लाह के कलाम थे, हर पैगंबर। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम थे। ये मैंने जवाब दे चुका, जवाब देने के बाद भी आप फिर से दोहराते क्योंकि आपके ध्यान में सवाल है। जाकिर भाई ने जवाब दे दिया, फिर से दोहराएंगे क्योंकि आप जाकिर भाई को सुनते ही नहीं, आप समझ रहे? तो ये जवाब तो मैंने पहले दे चुका हूं, फिर से आप रिपीट कर रहे। वो आदत है रिपीट करने की, माइक पे आके रिपीट करना, राइट पे आके रिपीट करना। ये जवाब तो मैं दे चुका हूं 1 घंटा पहले, फिर से क्यों दोहरा रहे? मैं जवाब सेम रहेगा। अगर अल्लाह ने किसको लक़ब दिया कोई रसूल को, मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया था वो अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर अल्लाह के दुश्मन थे। अगर कहा गया था ये सादिक पैगंबर थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर झूठे थे। अगर कहा गया था ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह थे और ये लक़ब याह्या अलैहिस्सलाम के लिए भी कहा गया कुरान में, तो क्या आप कहेंगे याह्या अलैहिस्सलाम खुदा है? नहीं, ये सेम लफ्ज जो बोल रहे हैं कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल किया गया, तो क्या आप कहेंगे वो खुदा है? नहीं। तो ये लक़ब अल्लाह ताला की तरफ से हर पैगंबर को लक़ब दिया गया, उसके माने नहीं कि खुदा बन जाते। तो ये जो बाइबल का कोट के गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, उससे जाहिर होता है ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और सब पैगंबर राह थे, हक थे, अल्लाह की तरफ रास्ता दिखाते थे इंसानों को। अच्छा, माइक नंबर 3 जो सामने है मर्दों की तरफ, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज माइक पे आए। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। माइक नंबर 3 से बोल रहे हैं क्या? जी जी सर। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज उमर इकबाल, आई एम अ पुलिस ऑफिसर। सर मैंने डॉक्टर आर यू मुस्लिम राइट? यस सर, आई एम मुस्लिम। अपना योर पुलिस ऑफिसर जी, अपना सवाल क्या है? सर मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना था क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना हलाल है या हराम है स्पॉट ट्रेडिंग पे। इसे मैं डॉक्टर साहब की ओपिनियन लेनी है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना हलाल है या हराम है, स्पेसिफिक स्पॉट ट्रेडिंग में। भाई साहब ने पूछा कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना हराम है क्या हलाल है? इसके अंदर उलमा का इख्तिलाफ है, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं एहतियातन इसमें नहीं डील करे तो अच्छा है। क्रिप्टो करेंसी चाहे बिटकॉइन हो, तो अक्सर उलमा कहते हैं कि कोई उलमा ने ये नहीं कहा कि हराम है, लेकिन क्योंकि इख्तिलाफ है और हमें पता नहीं एक्चुअली कितना ये करेक्ट है, इसीलिए उलमा कहते हैं कि एहतियात लीजिए, अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होने से परहेज करेंगे तो सही है। जो मलेशिया भी एक मुल्क है जिसमें काफी एडवांसमेंट है, तो शेख दाऊद बकर आज की दुनिया में मुफ्ती तकी उस्मानी इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है, नंबर 2 है दाऊद बकर। तो मलेशिया में रिसर्च किया गया और जो मेरे इल्म में है वो कहते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी इस शराइत के ऊपर है और ये हो सकता है तो हलाल है। ये शेख दाऊद बकर ने फतवा दिया, बाकी लोग का इख्तिलाफ है। लास्ट जब मैंने बात की थी मुफ्ती तकी उस्मानी से, जब वो मलेशिया आए थे तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले, तो उन्होंने भी ये कहा था कि अभी मुझे पता नहीं क्योंकि तहकीक हो रही है तो फतवे चेंज हो सकते हैं। जी सर। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी तक इस पे एडवांसमेंट नहीं होता, तो परहेज करना बेहतर है। और अक्सर उलमा ये कहते हैं जो मेरे इल्म में है, शेख दाऊद बकर जो मलेशिया के हैं, उन्होंने चंद साल पहले कहा था कि कुछ शराइत जो शरिया के पूरे होते हैं तो ये हलाल हो सकता है, लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं कि ये डाउट है, इससे परहेज करें तो बेटर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर। पाना पैगाम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम प्लीज। जाकिर नाइक का चैलेंज कबूल है जी मुझे। जाकिर नाइक ने चैलेंज किया है कि कोई भी मसीही जो है मर्द का बच्चा वो आ जाए और मसीह को बाइबल से खुदा साबित कर दे कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा, मेरी इबादत करो। मुझे मैथ्यू सुलेमान को, बंदा चीज को, जाकिर नाइक के चैलेंज कबूल है और मैं 10-20 हज़ार जो उनकी रिक्वायरमेंट है किसी 20,000 का मजमा लाना है, वो भी बंदा चीज ले आएगा। तारीख दें, टाइम दें,
जगह बताएं, बंदा नाचीज हाजिर हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्लिप काट के आप इसको सोशल मीडिया पे जहां मर्जी फेंकते फिरें, जाकिर नाइक तक इस बात को पहुंचाएं। ठीक है जी।